into cloud so that I can provide you for 28 hours, at least 24 hours. Lakshmi, yes. Good evening, sir. Good evening. I'm from Hyderabad, sir. Hyderabad. Okay. And Mother of a 20. your mail ID is what? I am not able to find the mail ID. I think you are joining first time to our. Pardon? Yeah, you are joining for the first time. Yes. So what is the mail ID? LPOOSARLA. Yeah. Lakshmi. Yes. No, this is Sikandrabad. Yes. Lakshmi S. Okay. And Manoj Singh ji. गुड इवनिंग सर। मनोज कुमार सिंह। मैं एक्चुअली मेरा बेटा 14 साल का है। मेरा बेटा उसको ADHD प्लस ASD डायग्नोज हुआ है। और अभी जी। And you are from which place? I am from Bhopal, sir. I remember you have earlier also registered. I don't know whether you joined or not any of our meetings. Yes, sir, I have joined some few of your meetings earlier. Okay. Prakash ji. Prakash. Hello. Yeah. Good evening, sir. This is Prakash from Hyderabad. Okay. My wife Jyoti is also with me. So she's a regular participant. Yeah. Right. And Jayashree and Aditya. Jayashree. Jayashree, come unmute yourself. Yeah. And Mr. Aditya, you can actually speak so that everyone will understand. Good evening, sir. Yeah. Sir, I am Aditya's mother speaking. Okay. And we actually joined the meeting together. Okay. And I've asked a question about ADHD, OCD, and learning disability. Okay. And what is your mail ID to register? MONIKAGUPTA. And you are from Veeraval? Yeah. Yes, sir. And Uma Thangar Raju ji. Uma ji. Yeah. If someone has opened 2 devices, one has to be muted. Sorry, I have to introduce myself. Yeah. Uma ji, tell me. Chennai. My son is 24 years old. He's in the spectrum. He goes to a special school. And he has got OCD, all fixation, all these kind of things. Okay. And which ID you have registered? Mail ID? It's for the first time. If he sees some switches on for the first time, it has to be always on. So similar kind of things. Okay. So you are registered to which mail ID? My mail ID? UUMMAA68@gmail.com. Okay. You are attending first time, right? Pardon? I'm not You able are to hear. attending first time our sessions, yeah? Yeah, first time. Okay. And you are from Chennai? Yeah. Chennai. Okay. And Deepali Ahire ji? हाँ सर। Tell me something about yourself. आपके बारे में थोड़ा बताइए। जी। तो जब तक मेरा ख्याल है नेहा जी अभी बची रह गई हैं और नेहा जी और Actually, I can understand only English or Tamil, not Hindi. Okay, so it will be English and Hindi. Okay. So you will be you in case you don't understand somewhere, you just ping in the message. I'll just alert Garima madam to speak in English. Okay. Yeah, or maybe translate in English.
Thank Jesse, you. your number, your this thing pending. Your introduction is pending. Priya ji. Okay, so I think they are taking some time. So I'll introduce myself. I'm Anurag Srivastav, father of Vatsal, 24-year adult, and we have gone through the same cycle of behavior and other things, and then we have worked a lot on this and managed many things so that at least we know that what we have done is okay. And similarly, we helped many people for past 5-10 years so that they manage their behaviors. Just because my wife is RCA certified special educator, so I was able to do it. And here I'll invite her so that for next 4 hours you get value addition. You will get recording of this for next 24 hours through. You'll get recording on Zoom, so you can always see the recording for 24 hours. I want everyone to be alert so that it is not a normal. Earlier we used to do free of cost behavior management. We saw that the alertness was not so much, so we decided to charge very nominal so that only serious players should come. The only serious person who need this help should come, and they should remain here for next day also. So with all your permission, I show the Google form which you have filled. Those who have filled, 6 people have filled Google form. Yeah, sir. Okay, thank you. So Prabhaji is here. So she wants her daughter is 18-year-old. Would like to learn self-regulate her emotion and able to control her anxiety outburst. Certainly ये बहुत जरूरी है. And Priya ji है meeting में ना, right? Priya ji has not introduced herself. She has written BE. B means B option and E option. Okay, that is what she meant. Manoj Singh ji hai. She has written short-term goals that I want to control his hyperactivity and energy myself to see him improve on daily basis. I would want to see him improve his skills. I would want to see him control his aggressive behavior and improve. Aggression is very much there at teenage. Third is Rishikesh. I want to make him eat food on his own. Acha. I want him to engage conversation with others. I want to, okay, sustain himself. Okay, his skills only. So Jyoti ji hai Hyderabad se, want him to more calm and focus in his life. Right. So with this, I have Garima madam is listening this conversation, so I'm handing over to her so that she can start with her session. So thank you. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. तो पहले तो आप लोग को सबके बच्चों को ऑटिज्म है या फिर कुछ प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे? चैट में लिख सकते हो या बोल सकते हो, क्योंकि बिहेवियर थोड़ा बहुत सबको पता है कि बिहेवियर एक्चुअली क्या होता है. प्रैक्टिकली नहीं, वैसे थ्योरेटिकली बिहेवियर क्या होता है. एनीबॉडी नोस? Hello. Yeah. Yes. हाँ. Yes, tell me. You know about behavior. What is actually behavior? अभी जाता है.
आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। फ्लाइट टिकट। आप मुझे, मैं सुनाई नहीं पड़ रहा है मुझे। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप सब बहुत बिहेवियर्स बिहेवियर्स आपस में बातें करते हैं, पर एक्चुअली व्हाट इज कंसिडर्ड एज बिहेवियर? इंक्लूडिंग फ्लाइट। डॉक्टर अशोक मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ। मैं बाद में आपको सुनती हूँ, अभी सुनाई नहीं पड़ा। मैं ये बता दूं, बिहेवियर्स हम लोग जिसको बोलते हैं आपस में कि किसी ने किसी को मारा, या किसी ने किसी को पुश किया, या डॉक्टर अशोक यू वांट टू से समथिंग बट यू आर नॉट ऑडिबल। कोई बात नहीं। तो जब हम ये सो कहते हैं ना बिहेवियर्स बिहेवियर्स, तो एक जनरल सा जो हमारे अंदर एक इमेज बनती है इस चीज को लेके कि somebody is hitting someone, somebody is pushing someone, कोई किसी के बाल खींच रहा होगा, कोई स्पिट कर रहा होगा, कोई कुछ तोड़ रहा होगा, तो हम इसको ही बिहेवियर बोलते हैं। तो मैं बिहेवियर क्या होता है मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ, बिकॉज बिहेवियर हमेशा खराब चीजों के लिए ही नहीं बोले जाते, बिहेवियर हमेशा अच्छे भी होते हैं। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट बिहेवियर, हमें ये दिमाग में बात रखनी है कि बिहेवियर आर नॉट ऑलवेज बैड, दे आर गुड ऑल्सो। अभी हम आपको बता देंगे। सो वट एवर वी इन ऑटिज्म एंड अब बाकियों के भी, नॉर्मल लोग का भी, न्यूरोटिपिकल का भी, न्यूरो डाइवर्जेंस का भी, वट एवर वी से एंड डू इज कंसिडर्ड एज बिहेवियर। तो जो भी हम कर रहे होते हैं या हम कह रहे होते हैं, कर रहे होते हैं इन द सेंस एक्शन हमारा क्या होता है, या हम जो भी बोल रहे होते हैं, वही दो चीज को हम बिहेवियर बोलते हैं। अगर हम लोग या फिर ऑटिज्म वाले भी अगर कुछ बैठ के सोच रहे हैं तो वो बिहेवियर नहीं है। या फिर आपसे कोई बोल रहा है कि मेरे बेटे को बड़ा अग्रेशन है, तो वो बिहेवियर नहीं है। मेरा बेटा बहुत हाइपर है, तो वो कोई बिहेवियर नहीं है। वो बहुत टैंट्रम दिखाता है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज बिहेवियर। तो बिहेवियर शुड बी वेरी मच ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। तो आगे बढ़ते हैं। मैनेज करना, मैनेज कैसे करेंगे बिहेवियर को? जब हम जानेंगे कि बिहेवियर एक्चुअली क्या होता है एंड विच बिहेवियर नीड्स मॉडिफिकेशन एंड विच बिहेवियर डजंट नीड एनी मॉडिफिकेशन एट ऑल। ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एंड असेसमेंट ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर्स। हम बिहेवियर्स को पहले असेस करते हैं, तभी हम उसको कैसे मॉडिफाई करना है या मैनेज करना है ये पता लगता है। पर ये कोई वन वर्ड में आंसर आपको नहीं मिलेगा कि एक सेंटेंस में या एक वर्ड में मैं बता दूंगी कि कैसे इसका सोल्यूशन क्या है। इसमें बहुत सारी चीज, इट्स एन ओशन, इसमें बहुत सारी चीजों का हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अभी हम सिर्फ बिहेवियर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सी चीज होती है जिससे हमारा बिहेवियर मैनेज होता है। तो वाई डू वी डू द थिंग्स वी डू, या हमको जो भी बोल रहे हैं हम क्यों बोल रहे हैं, अगर हम क्यों समझ जाएं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या वो ऐसा क्यों बोल रहा है, तो ये हम पता लगा पाएंगे कि हम इस बिहेवियर को कैसे सॉर्ट आउट करें। सो एनीथिंग इज कंसिडर्ड एज बिहेवियर। हमारा ईटिंग हैबिट्स, हमारा वर्क बिहेवियर, हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हम जो भी दिन भर का काम कर रहे हैं, बेदिंग, ईटिंग, कोम्बिंग, सेइंग पिक्चर ऑफ name of any picture, या matching anything, और answering any question। आप किसी से पूछ रहे हो, बच्चे से पूछ रहे हो what is this, this is again a behavior। अगर वो बोल रहा है this is an apple और apple, this is a behavior। तो saying anything और doing anything is considered as behavior, चाहे वो अच्छा हो और चाहे वो खराब हो। तो क्यों हम करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन? क्योंकि हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में बच्चों को जिनको है उनको सिखाना चाहते हैं। So, behavior modification helps children with developmental disabilities in the following areas. उनका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, उनका सोशल स्किल्स नहीं, उनका डेली लिविंग एक्टिविटीज में प्रॉब्लम, उनका टॉलरेटिंग प्रॉक्सिमिटी, उनका कॉग्निटिव स्किल्स, और ऑल्सो व्हेन दे आर नॉट एंजॉइंग इन लर्निंग टू एंटरटेनिंग बनाना, उसको फुल ऑफ मोटिवेशन बनाना के लिए हम लोग ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑन द टेबल करते हैं। जब हम ABA VBA या हम किसी तरह का थेरेपी दे रहे हैं विद चिल्ड्रन, जब हम उसको नया नया चीज सिखा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिहेवियर मैनेजमेंट।
उसमें हम क्या करते हैं, ABA के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि हम उसको रीइंफोर्स करके हम नई 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 स्किल सिखाते हैं. So when you are asking any child to match 3 or 4 pictures, or if you are asking showing any picture, what is this या what is he doing, ये सारा जो antecedents है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका जो वो आंसर देंगे with prompt और without prompt, that is also behavior. ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ कि सब वही बैड बिहेवियर को दिमाग में रखे हैं. तो अच्छे बिहेवियर को कैसे सिखाना है ये भी देखना है हम. तो पहले तो हम ये जान लें कि बिहेवियर है क्या, और थोड़ा इसको क्लियर करते हैं. सो विवेक इज हैप्पी दैट स्लमडॉग मिलियनेयर वन द ऑस्कर्स. नाउ इज दिस अ बिहेवियर? आप बोल सकते हैं ना सब लोग, म्यूट अनम्यूट करके. विवेक इज हैप्पी दैट स्लमडॉग मिलियनेयर वन द ऑस्कर्स. Anything we Ladies, thank you. Yeah. is the behavior. Bill executing. Yeah, Prabha? Is this a Yes, it is behavior? a behavior, ma'am. Yes, it No, is a this is behavior. not. This is No, not no, a no, no, behavior. ma'am. It is This just is an not a emotion. It is behavior. not a Ah, behavior. yeah, yeah. Okay, okay. Very nice. Now, Pooja brushes her dog's coat every morning. Is this a हाँ, वो behavior? behavior. Yeah. It's a behavior. Very good. Now, after finishing her work, Pinky likes to sit and watch her favorite serial on TV. It is a behavior. It's sitting and watching. It's a behavior. Sunil is angry about his daughter's school report. वो emotion है. It's not a behavior. It's not emotion. It's not a behavior. Sunny जान, unless and until उस angry में वो क्या कर रहा है, is हाँ, that action. this is कुछ not action हो considered तो. as behavior, right? So sunny January day made Meera excited about the family picnic. She's not doing anything with excitement. So if she is not doing anything, just by saying this ki Meera is excited is not considered as behavior. Why I am telling you all these things? Because ये जो bad definition है ना, ये जब आती है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. हमको हर चीज measurable form में, observable form में, frequency के form में, and exactly what a child is doing चाहिए रहता. So anything we say and do constitutes a behavior, and behavior should be observable, should be measurable. Measurable in the sense कि कितना हो रहा है, कितना क्या duration है, क्या frequency है, ये. And it should be very much specific. So if the child is going to the park, is pushing, this will be considered as one particular behavior. Is hitting will considered as another particular behavior. Is spitting another particular. तो एक हर particular behavior का अलग 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 modification और management होता है. बहुत सारे behaviors में we use social stories, बहुत सारे behavior में we don't use social stories. कुछ और करते हैं, schedule को ठीक से रखते हैं, structure पे काम करते हैं. बहुत सारे behaviors में हम reinforcement stop कर देते हैं, behavior को extension पे डालते हैं. बहुत सारे behaviors में हम simultaneously दूसरे action को reinforce करते हैं, उसको ignore करते हैं. It all depends. So सारे अच्छी बात कर रहे हैं. Saying one names, matching pictures, putting on a shirt, reading, naming a color, cutting veggies, sitting, waving, putting on shoes, doing a puzzle, each and everything is considered as behavior जो हम रोज सिखा रहे हैं अपने बच्चों को. So behaviors are always functional in some way, और हम कई बार नहीं समझ पाते कि इसका रीजन क्या है, and it serves as a means of communication actually. वो कुछ बोलना चाह रहे होते हैं बच्चे. अब हम किसी बिहेवियर को टोटली स्टॉप नहीं कर सकते. हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को अप्रोप्रिएट बिहेवियर से रिप्लेस कर सकते हैं हमेशा. और कुछ जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर हैं उनका तो हम स्टॉप भी नहीं कर सकते. हम सिर्फ उसका ओटी ही दे सकते हैं. हम उसको स्टॉप नहीं. कोई वर्बल स्टिमुलेशन ले रहा है और या तो बोले जा रहा है या रॉक कर रहा है या हिल रहा है, तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते. हम उसका ओटी वाला सोल्यूशन ढूंढते हैं. कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ एक्सरसाइज जिससे वो वाला इनपुट भी मिल जाए एंड हमारा बाकी की थेरेपी भी हो जाए. So if 2-year-old Bablu sits in his mother's lap, and if
22-year-old Bablu sits in his mother's lap. Which behavior needs modification? Obviously 22-year-old Bablu का करेंगे हम. 10-month-old Sunny threw his feeding bottle and 10-year-old Sunny threw his plate and screamed. हम 10-year-old का करेंगे. पर ये होता ये है कि जैसे पेरेंट्स अवेयर होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, वो छोटी 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 चीज के भी बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए परेशान होते हैं. इसलिए हमने ये लिखा है इसमें. तो बिहेवियर का मॉडिफिकेशन तभी होना है व्हेन इट इज इंटरफेयरिंग इन द लर्निंग प्रोसेस, या कोई इंजुरी या हार्म कर रहा है, या अपनी डेली लिविंग लाइफ रूटीन्स या एक्टिविटीज जो उसके लेवल पे एक्सपेक्टेड है वो नहीं कर पा रहा है, या फिर फैमिली का मेंटल पीस एंड हेल्थ एंड सब कुछ चला गया है, तो ही हम बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं. अदरवाइज इफ द चाइल्ड इज लर्निंग जो उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग और थोड़ा बहुत उसका बिहेवियर हो रहे हैं तो उसको इग्नोर करना है. थोड़े बहुत क्या, हमारे भी होते हैं और हमारे तो बहुत ज्यादा होते हैं. मुझे बिल्कुल आज आवाज क्यों नहीं आ रही है किसी की? हाँ बोलो, अब आएगी. हाँ कुछ बोलना चाह रहे कोई? So my child throws a tantrum when he gets angry. It's a bad definition. इसमें कुछ भी modify नहीं कर सकते. So my child sits down on the floor, kicks his legs, and screams when I say no to him is a behavior. और हर behavior के वो भी मैं बताती हूँ. हर behavior के पहले something happens that is considered as antecedent. हर behavior के just बाद something happens and that is considered as consequence. By manipulating the antecedents and the consequences, we do the behavior therapy on the table also and off the table. So Sunil is aggressive, bad definition. Sunil hits other students when they get too close to him. ये behavior है, measurable है, observable है, specific है. Tuhin is hyperactive. Tuhin gets up from his seat and walks around the class. ये एक्शन में स्पेसिफिक है. और he does not complete his worksheet on time. ये भी एक्शन में दिख रहा है. तो इसलिए यही बिहेवियर है. So any action or any saying which you are considering as a behavior, उसके रेफरेंस में जस्ट पहले जो हुआ is considered as antecedent. और जो आप बिहेवियर, क्योंकि एवरी एक्शन इज अ बिहेवियर, तो जिसको आप बिहेवियर मान रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जस्ट उसके बाद जो हुआ है उसको कॉन्सिक्वेंस कहते हैं. जब हम रीइंफोर्स करते हैं या हम कोई रिवॉर्ड देते हैं और उसको कंडीशन करते हैं, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन के साथ पेयर करते हैं, इसको कहते हैं कंडीशनिंग. जब हम कंडीशनिंग करते हैं अपने सोशल प्रेस को किसी कॉन्क्रीट रिवॉर्ड के साथ, जस्ट ओनली सोशल प्लेस वर्क नहीं करता, आपको किसी कॉन्क्रीट रिवॉर्ड के साथ उसको कंडीशन करना है, पेयर करना है, और फिर आपको फेड कर देना है. फिर गुड जॉब डन एंड वेल डन विल वर्क इन फ्यूचर. सो एनी बिहेवियर इज हैपनिंग जस्ट बिफोर द बिहेवियर कुछ हुआ तो एंटीसीडेंट. सो सपोज एक बिहेवियर है जिसमें आप, बच्चा जो है आपको कप पॉइंट कर रहा है या शो कर रहा है, तो उसके पहले जो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया शो मी कप और पॉइंट कप और टच कप is an antecedent. To that antecedent, the showing of cup जो action is a behavior, and for that behavior if you are saying or doing something, good job, very nice, well done, and you are giving anything, so you are working on consequence. If you are avoiding the consequence and not saying anything, कुछ भी प्रेज नहीं कर रहे हो और कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं दे रहे हो, ब्लैंक जा रहा है, तो आपकी थेरेपी बीच में रुक रही है. So you're giving the instruction show cup, child is showing the cup and कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? Behavior will go down. The showing of cup action will go down. What is happening? Behavior is going down. Why it is going down? He is not showing any interest in showing the cup because he is not getting anything as a consequence. So to strengthen that showing of cup, you should always say very nice, very good, well done, शाबाश, whatever. और तुरंत देना है रिवॉर्ड के साथ, कॉन्क्रीट रिवॉर्ड के साथ, देन ये आपकी जो थेरेपी है वो सही गई. तो पूरी थेरेपी का क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन दिया,
काम कराया विद प्रॉम्प्ट और विदाउट प्रॉम्प्ट, एंड एक रिवॉर्ड या कॉन्सिक्वेंस दिया। ये 3 के इंस्ट्रक्शन में या 3 के एक्शन में आपकी स्पेशली एबीए और वीबीए चलता है। विदाउट एंटीसीडेंट कुछ नहीं होगा, और आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और बिहेवियर करवा रहे हो और कॉन्सिक्वेंस नहीं दे रहे हो तो भी वो एबीए नहीं हो रहा है, और वो वर्क भी नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशनल वैल्यू हर चीज के लिए 0 है। आपने कुछ भी नहीं बोला, नेक्स्ट टाइम वो कप शो ही नहीं करेगा, या करेगा तो तीसरे चौथे दिन वो बंद कर देगा। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड एबीए वीबीए की कॉन्सिक्वेंस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो जब हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस देखते हैं तो हम सर्कमस्टांसेस भी देखते हैं कि कौन से सिचुएशन पे वो चीज हो रही है और कौन सा ट्रिगरिंग कमांड है जिससे बिहेवियर बढ़ रहा है। तो ऑफन इट इज सीन दैट जो जब भी आप नो बोलते हो, इट ट्रिगर्स द बिहेवियर, एनी काइंड ऑफ बिहेवियर। व्हेन यू से नो, ट्रिगर्स। So don't say no. Instead of saying no, give any other instruction to replace that action. For example, जैसे कोई है मेरे सेंटर पे बहुत सारे सब बड़े हैं, कोई आ रहा है पीछे से आपको मारने, या वो आगे से आ रहा है आपको हिट करने, तो जनरली क्या होता है, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये नहीं होना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नो भी नहीं बोलना है, मार भी नहीं खाना है, तो कैसे करेंगे? तो कोई आ रहा है मारने, आ रहा है आपको, सेट, टॉयलेट जाओ, ईट, वहां बैठ जाओ, ये हमने उसको डाइवर्ट कर दिया। इमिडिएटली वो एक्शन जो उसका एकदम से आया था ना, वो इंटेंशनली मारने के उससे नहीं आ रहा है, वो तो उसके ब्रेन में कुछ हुआ और उसको लगा कि हमें हिट करना चाहिए, और आपने तुरंत डाइवर्ट कर दिया, तो तुरंत वो सिग्नल स्टॉप हो जाता है। वो कोई बदला लेने तो आ नहीं रहे, तो इसलिए नो नहीं कहते हम डाइवर्ट कर देते हैं। कोई काटने आ रहा है, तुरंत डाइवर्ट कर देते, वहां चले जाओ, ये ले लो, ऐसे करते। एंड ऑफ कोर्स रिवॉर्ड नहीं दे देना है आपको, अच्छा मारने आ रहा है, ये लो कुरकुरे, ऐसे नहीं करना है। So antecedents always allows you to predict when the behavior may occur. So by manipulating or by changing the antecedents, you can change the behavior. That's why antecedents are important. कई बार क्या होता है, बिहेवियर हो क्यों रहा है, क्योंकि उस टीचर का इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है। इंस्ट्रक्शन क्या है, एंटीसीडेंट है। बिहेवियर क्यों हो रहा है, बिकॉज उस सिचुएशन में बहुत बाहर की नॉइज है, तो नॉइज क्या हो गई, एंटीसीडेंट्स हो गई। उस जगह बिहेवियर इसलिए हो रहा है, बहुत स्मेल है, बहुत ज्यादा लाइट है, या बहुत ज्यादा क्राउड है, तो ये सारी चीजें एंटीसीडेंट्स आती हैं। प्रैक्टिकली यू ऑल नो, बट टेक्निकली दीज थिंग्स आर नोन एज एंटीसीडेंट्स। There's always an antecedent to behavior. आप सेल्फ स्टीमिंग या सेल्फ स्टिमुलेटरी या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो सेंसरी इश्यूज से हो रहा है, तो आप उसको तुरंत स्टॉप नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंसेस सिमिलरली जो जस्ट बिहेवियर के बाद तो होता है, ये बहुत इजी है समझना, क्योंकि हर बिहेवियर, हर एक्शन के बाद आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, रीइंफोर्स कर रहे हो, तुरंत 5 मिनट बाद नहीं, तुरंत। और वो प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस है, बिहेवियर विल गो अप, गुड बिहेवियर्स। एंड सिमिलरली इफ द कॉन्सिक्वेंसेस आर प्लेजेंट, bad behaviors will also go up. So good or bad, all the behaviors will go up, will strengthen, because your consequences are pleasant for them. So make sure whichever behavior you are rewarding as a consequence should not be pleasant for him if the behavior is undesirable. If behavior is desirable, then only reinforce, and you must reinforce that behavior which is desirable. बहुत ज्यादा आपको कॉन्शियस रहना है। गलती से आप, जैसे सपोज छोटे से एग्जांपल लेते हैं, मैच करा रहे हो आप, ठीक है, मैच करा रहे हो और आप बोल रहे हो मैच मैच, और उसने कुछ गलत मैच कर दिया, या उसने पिक्चर उठा के फेंक दी, या उसने आपका बाल खींच लिया, कुछ भी हो सकता है। तो आप अरे 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 ये क्यों कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसे तो कुछ तो भी आप कुछ भी बोलोगे ना, ये भी उसके लिए प्लेजेंट हो सकता है। आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने बचाव में कुछ कुछ करा, एक्शन किया, ऐसे किया, ये कॉन्सिक्वेंस भी उसके लिए प्लेजेंट हो सकता है फॉर अनडिजायरेबल बिहेवियर। सो व्हाट विल हैपन, वो वही करेगा जिसके लिए आपने उसको आओ चल डांटा है। तो क्या करना चाहिए उस समय पे,
अगर उसने खींचा तो उसका हाथ पकड़ के, आपका फ्लैट फेस, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी स्माइल, विदाउट एनी करे बगैर आपको फिर से वोट देना है मैच, और इस बार कॉन्शियस रहना है, हाथ पकड़ के और कराना है। और अगर अच्छे से कर ले तो रिवॉर्ड देना है, नहीं अच्छे से करे तो नहीं देना है, इग्नोर। ये टिप्स होती हैं एज अ थेरेपिस्ट जब आप काम कर रहे होते हैं। बिहेवियर्स दैट आर नॉट फॉलोड बाय प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस आर लेस लाइकली टू अगर अगेन। अगर आपने उस वक्त इग्नोर कर दिया तो वो नेक्स्ट टाइम वो बिहेवियर नहीं होगा। सो अगर आपको कोई हिट करने आ रहा है, आपको हिट कर दिया, मान लीजिए आप एंटीसीडेंट के लिए कॉन्शियस नहीं थे, आपको पता था या नहीं पता था, उसने हिट कर दिया, तो क्या करेंगे? ऐसे करके देखेंगे ना पीछे, आप वो नहीं देखना है। दैट इज अगेन अ प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस, and every behavior will gets converted into attention seeking. So there are 5 main causes for the functions of behavior, आपको पता भी होगा। वो 5 functions तो होते हैं, पर अगर बाकी के 4 functions हैं, आपने consequence में बहुत सारा attention दे दिया मजे वाला, आह भी कर दिया, तो it gets converted into attention seeking. So if a function of the behavior is sensory, you are giving much attention, it will get converted into attention seeking. So if the child doesn't need any sensory input, kabhi, so he will do for the attention. There are always five reasons for any behavior: medical, attention seeking, escape, tangible when a child needs anything, or medical and sensory. पता होगा आपको, ठीक है? ये देखिए, the 5 functions of behavior: social reinforcement and attention seeking convert हो रहा है। क्यों ऐसा होता है कि always gets converted into attention seeking and not any other function? क्योंकि अटेंशन तो आप वैसे तो देते ही नहीं, जब अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो देते ही नहीं, तो जब खराब बिहेवियर कर रहा है तो बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है, तो हम खराबी क्यों ना करें भाई? ஆமா இதுல கத்துக்கிறேன் சார் இப்போ सबको म्यूट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है? और when you want something tangible or escape, जब उसको अवॉइड करना है वो चीज करना ही नहीं चाहता, और सेंसरी और मेडिकल। ठीक है, अब पीछे चलते हैं एक बार। तो एक कुछ एक्टिविटी करते हैं, आप लोग अनम्यूट करके बोलो, चाह रहे हैं आप बोलो, क्योंकि ये एक्सरसाइज है आपको अवेयर रखने के लिए। तो as dad takes him to toy store, इंग्लिश में भी बोलना पड़ेगा थोड़ा। Yeah, okay. As dad takes him to toy store, says no when he asks for a toy. S throws himself on the floor and kicks and screams, and S dad buys him the toy. Now these are the antecedent behavior consequence. Now इस केस में, फर्स्ट केस में, S के केस में, will the behavior rise or fall? The screaming and kicking and throwing himself on the floor will increase or will decrease? It will increase. It will increase because pleasant consequence मिल गया bad behavior को, right? And what was the triggering command? What was the antecedent for that behavior? Dad का no. Dad का no, and also the toy store also. Parent asks R to point to activity. It was a new activity. R screams and bites her hand, and parent stops the activity. The screaming and biting will increase or decrease. What is the function of the behavior here? And what was the function of the behavior earlier? In S case, what's the function of the behavior? In first case, what is the function of the behavior? Tangible. Tangible. Yes. And what is the function of the behavior in the second case? Intangible. Escape. Escape. So a W's mother says, eat your carrots. W starts crying and W's mother lets her go.
Function of the behavior? Escape. Escape. Now behavior will increase or decrease? Increase. Yes. When the function of the behavior is escape, आपको make sure होना है कि you must prompt him to do that behavior. Don't let her escape from that. So W's mother says, eat your carrots, and W starts crying and he has to finish the carrots. Now here the function of the behavior was escape. So here eating carrot will increase or decrease? Decrease. Increase. Decrease. M's father asked her to pick up. सबको मालूम है मिलके, you all know about the antecedent and consequence? Everybody knows that, antecedents and consequences. M's father asked her to pick up her toys. M says no. M's father picks up the toys himself. Function of the behavior क्या है यहाँ पे? What is the function of the behavior? Escape. Right? Yeah. Escape है. When the function of the behavior is escape, आपको वो काम कराना ही है. When the function of the behavior is attention seeking, ये बहुत मुश्किल है. You don't have to give any kind of attention. तो आप attention को क्या समझते हो? बातें करना. अगर आपको किसी ने मारा और आपने हल्का सा उसको देख भी लिया, वो भी attention है. अगर आप कोई कुछ बैड बिहेवियर कर रहा है, सपोज एक था जो यूरिनेट करता था स्विमिंग पूल में, और उसको दो लोग दूर से देख के आपस में बात कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं कह रहे, दैट इज ऑल्सो अटेंशन गिविंग. वो तो देखते ही हैं, इनको तो क्लू चाहिए कि हमारे बारे में कुछ हुआ क्या, तो इनका वो सेंस बहुत तेज होता है. वो अटेंशन हम रोक नहीं पाते, और इस वजह से वो सारा बिहेवियर अटेंशन सीकिंग में कन्वर्ट होता है. मैडम वो पब्लिक प्लेसेस में करा तो क्या करना है? पब्लिक प्लेस में करने में बहुत दिक्कत है. जैसे अभी स्विमिंग पूल में हो रहा है, तो करा था ना बिहेवियर मैनेज. हम लोगों ने क्या किया, उधर एक वॉल तक क्रिएट करी और कुछ ऐसे उसको ब्लॉक किया कि जब वो जाए तो बाकी सब हट जाते थे. बिल्कुल पहले से ही टाइम फिक्स था, पहले से ही हट जाते थे. लंच के बाद होता था. लंच के बाद में सबको ये इंस्ट्रक्शन था सेंटर पे ही कि सब अपने अपने क्लास में रहेंगे, उधर देखेंगे भी नहीं, उधर से बात भी नहीं करें. फिर भी कभी कभी दूसरे जो लोग आते थे होता था. तो अभी अगर पब्लिक प्लेस पे हो रहा है जहां पे आप एकदम से गए हो और हो रहा है, तो फिर सोशल स्टोरी लिखी जाएगी. अटेंशन सीकिंग जरूर था, तो हम लोगों ने तो अटेंशन को रोका, बहुत बहुत मुश्किल से रोका है अपने अटेंशन, बाकियों को अटेंशन ना दें, और वो बिहेवियर हो भी गया, ठीक हो गया. हाई फंक्शनिंग वाज डूइंग दैट. थैंक यू हाई मैडम. फंक्शनिंग है ना, उसमें वही लोग ऐसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स करते हैं, उनका दिमाग चलता है. थैंक यू. वो उसको पता है कौन सा पब्लिक प्लेसेस है, कौन सा न्यूट्रल स्पेसेस है, उसको पता है, इसलिए He knows that. He was doing that particular behavior in the swimming pool only at center. And he was 22, 23 at that time. मेरी बेटी 14 है, ऑटिज्म है. अच्छा. वो पता है. थैंक यू मैडम, थैंक यू. मैं Okay. केरला से. Okay, Priya. It's very difficult to stop giving attention, but somehow you have to do that. Because एक फंक्शन है ये अटेंशन सीकिंग. तो ऐसे में क्या करते, जब when you stop giving attention for any particular behavior, that means you are putting that behavior on extinction. So when you put any behavior on extinction, सिर्फ एक्सटेंशन पे डाल दिया, रीइंफोर्समेंट स्टॉप कर दिया, अटेंशन नहीं दिया, अगर अटेंशन रीइंफोर्समेंट था, will not work actually. You will have to reinforce any other simultaneous behavior at the same time which was good. कुछ तो वो अच्छा भी कर रहा होगा, और prompt him to do something good जिसको आप deliberately बहुत अच्छे से you reinforce that behavior. तो जब दो चीज होगा कि when you are reinforcing any particular behavior simultaneously when bad behaviors are also happening, then that works actually. So putting any behavior on extension and simultaneously reinforcing any other good behavior, very much reinforce करना, that will work actually.
So consequence which follows a behavior होता है, हर behavior के बाद कुछ ना कुछ तो होता है. So ये तो मैंने आपको on the table I told you कि you are giving any अभी conference 2 घंटे चलेगा ये, अभी 2 घंटे चलेगा ये, you are giving any तो पैसा दिया ना इसके लिए. प्लीज म्यूट कर लो. तो जस्ट जो बिहेवियर के जस्ट बाद कुछ हो रहा है वो तो आप ऑन द टेबल आप रीइंफोर्स करो, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस. आप मैनिपुलेट कर रहे हो, पर आप कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो हो ही जाते हैं और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. आप जैसे पार्क में गए. हाँ, अच्छा टाइम क्या हो रहा है अभी. आप जैसे पार्क में गए और किसी बच्चे ने किसी को पुश कर दिया, तो उस वक्त आपने तो कुछ नहीं कहा कि आप, क्योंकि आपको कॉन्सिक्वेंस पे चुप रहना था. बाकी लोग आ गए उस वक्त लड़ने झगड़ने, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ना. तो उस वक्त आपको देखना पड़ेगा कि कैसे उनको मना करें या कैसे उसको स्ट्रक्चर करें कि वो हट जाए वहां से. So people in the environment do when their behavior occurs, that is also a consequence. And what the child gets after the behavior or what the child gets out of that behavior, that is also a consequence. तो अब आप लोग कुछ अपने बच्चों के बारे में कोई बिहेवियर अभी डिस्कस करना चाहते हो, सो दैट कि सभी को पता लगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो जाएं. आपको फंक्शंस ऑफ द बिहेवियर पांचों पता लग गए हैं. हाँ श्रद्धा प्लीज पूछे. यस मैम, एक्चुअली मुझे एक बात डिस्कस करनी थी. माय सन ही इज अ पर्सन विथ ऑटिज्म एंड ही इज 13 years old. तो अभी लाइक ही इज बिकमिंग अ टीनेजर. तो जो बिहेवियर उसका मैंने फेस किया था लाइक 2 months अगो, ही स्विमिंग पसंद है उसे. तो अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ हिज एज वगैरह ही स्टार्टेड नोटिसिंग गर्ल्स. तो थिंग इज हुआ ये था ना कि एट वन पॉइंट वो जब स्विमिंग के लिए गए तो ही नोटिस अ गर्ल whom ही लाइक्ड आई सपोज, एंड वो ना उसके बहुत नजदीक स्विम कर रहा था एंड आई कुड मेक आउट दैट द गर्ल वाज गेटिंग अनकंफर्टेबल. हुआ ये कि आई वाज नॉट इन द पूल विथ हिम, आई वाज आउटसाइड. तो मैंने दूर से देखा एंड आई ट्राइड कॉलिंग हिम, making sure that he looks at me and try to dissuade him from behaving like that. But उसने कैसे किया मालूम है? वो इग्नोर किया completely मुझे. He did not look at me and पूरा session ना he was like swimming near her, near that girl. पर I mean that girl was neurotypical. तो मैंने उसकी तरफ देखा लड़की को and I just expressed कि I understand what's happening, I'll take care of it. Because I realized कि she was getting uncomfortable. उसके बाद वो जब बाहर आया ना तो he knew he had done something wrong because he was avoiding me. At that point मैम मैंने क्या किया कि वो जैसे ही बाहर आया ना तो मैंने उसको साइड में लेके उसको समझाया कि what you were doing now was not correct. Was not correct. You should not go so close to anyone. He was not doing anything. He was But just. ma'am, I get that, but among neurotypical कई people. बार क्या है, हो सकता है कि he is not interested, वो कुछ करना नहीं चाहता, he was just उसको अच्छा लग रहा है उसके साथ. आप क्या करो, उस न्यूरोटिपिकल को अलग से बात करो और एक बार इससे आपके बेटे से उसका अगर वो वर्बल है तो बात करा दो या हाय हेलो. नहीं, नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल है तो हाय हेलो करके दूर से ही थोड़ा सा आपस में फ्रेंडशिप टाइप करा दो, तो हो सकता है कि उसको लगे कि दिस इज द राइट कम्युनिकेशन वी शुड डू और इस तरह से पास जाके नहीं करना है. लेकिन उस केस में ये मैम बट द थिंग इज व्हाट I realize that, but the thing is, what ये मैंने observe किया है, especially when it comes to a special needs boy, people are by default afraid. So that girl, there's no way. I mean, honestly बोलती हूँ मैम, ये जो आप बोल रही है ना, it's not that easily possible. Yeah, I know. In that case, we should do then again a social story. Then होगा क्या श्रद्धा जी? Yeah, exactly. वही social story ना, तो any other girl, हो सकता है कोई आपका relative भी हो, then that social story will apply to that point at that point also ना. तो हर गर्ल के लिए अगर हम सोशल स्टोरी कर देंगे तो
या तो फिर आप हम्म adamant रहो कि for every girl, if you're using the social story like that, if for every girl you should हम्म maintain a distance, or you may say hi, hello हम्म for the हम्म not for the strangers but for the known ones. हम्म And इस तरह से हम कुछ उसका सर्कल बनाते हुए, the safe circle and the stranger circle, राइट using राइट that concept in a social story, then ये होगा कि सारे लोगों के लिए जो strangers हैं will maintain distance, and for the known one फिर ये भी हम्म हो सकता है कि हम्म वो distance maintain करे for the known one also, so that will see कि राइट राइट मैम, कैसे। एक्चुअली वैसे ही किया गया था बाद में। आई स्पोक विथ हिज टीचर, ही गोज टू स्पेशल स्कूल, सो वहां पे एग्जैक्टली वही किया। वहां के जो काउंसलर थे उन्होंने, they used a social story, you know, telling him about, you know, what is a respectful distance and all that, and how if you keep touching someone, or you know, just keep saying continuously hi to someone, they may not like it, whether it's a boy or a girl. And you know, she kind of made a point, like, you know, every time she was saying something, she used to like tap him on his shoulder. She kept tapping him on his shoulder, so she, I mean, tried to show him, see, if somebody does that continuously, even you don't like it. हाँ. I think he seems to have understood that, because that thing has But if does the social story contains the alternative कुछ अच्छा सा behavior या कुछ अच्छा सा चीज जो see, he might be liking that girl और उसको सिर्फ स्माइल ही देना चाह रहा हो, तो आप स्टॉप तो नहीं कर सकते ना, हो सकता है नहीं, वो बात तो सही है, बट मैम, in a pool where the clothing is already less, you know, do you understand what I'm trying to say, सोशल right? स्टोरी हम लोग थोड़ा सा और अच्छा लिखना होगा, जी। थोड़ा सा और तो स्पेसिफिकली अबाउट सेक्सुअल मैच्योरिटी, ऐसी सोशल स्टोरी कहाँ मिल सकती है मुझे वो ऑनलाइन? लिखना पड़ेगा ऑनलाइन। आप गूगल पे देखो, इफ कहाँ मिलेगा कुछ वो होता है क्या, तो ये तो हम लोग उसका पर्टिकुलरली जो बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं कि क्या चीज उसको वर्क करेगा इसमें। तो एक जनरल स्टोरी तो काम नहीं करेगी। मान लो हमने स्विमिंग पूल जी। में ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, तो वो काम नहीं करेगी, तो वो हमें नहीं, लिखना पड़ेगा स्विमिंग पूल या इन जनरल इन लाइफ, इन बिकॉज मैम जनरल। उसको मैंने बाकी वो सब लाइक यू नो प्राइवेसी एंड यू नो खुद का डिग्निटी एंड ऑल दैट, गुड टच बैड टच, वो ही इज प्रॉपरली ट्रेन्ड इन दैट, वो दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। बट ही जस्ट डजंट, आई मीन अभी बिकॉज वो बड़ा हो रहा है, तो ही, आई मीन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ही हैज स्टार्टेड नोटिसिंग गर्ल्स एंड ही डजंट नो हाउ टू गो अबाउट टॉकिंग टू देम। अच्छा श्रद्धा जी, हैव यू एवर यूज्ड द पिक्चर्स कि हाँ ये वाला पिक्चर बैड एंड दिस इज जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ पिक्चर्स नहीं यूज किए हैं। एंड वो एक एक्चुअली वर्कशॉप अटेंड किया था मैंने, तो वहां पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स बताए थे कि हाउ, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज वो यू नो सारा कुछ वर्क व्हाटएवर। करेगा एक साथ सोशल स्टोरी, जी। और साथ ही में कुछ और चीजों से सेंसिटाइजेशन विद पिक्चर्स, गुड और बैड वाला। एंड जी। क्या कहते हैं, ऑल्सो व्हेन अ गर्ल कम्स नियर बाय, तो आप उसके साथ और क्या कह सकते हो, कर नहीं सकते पर कुछ कह जी सकते जी हो, जी, कुछ हाँ हाँ, शेयर कर जी सकते जी, हो, वो है, यस, है ना। तो कुछ तो हाँ, उसको या अच्छा सा रिइंफोर्समेंट भी मिले जिससे वो वाला स्टॉप हो जाए। जस्ट जी जी ओनली जी, स्टॉपिंग द थिंग्स विल वोंट वर्क। करेक्ट करेक्ट देखते हैं हम करेक्ट, सोशल उसे वैसे ही स्टोरीज लिख सिखाया सकते गया है हैं। मैम हाँ कि हाँ जी, कि से हाय फ्रॉम यू नो फ्रॉम अ डिस्टेंस, से हाय, इफ शी सेज हाय देन नेक्स्ट टाइम टॉक मोर, and also समथिंग लाइक saying दैट, इफ शी if he's डजंट से saying हाय इट्स ओके। हाँ, but if he's saying hi, person should respond also. आई नो एग्जैक्टली, वही तो बोल रही हूँ, अगर रिस्पॉन्ड किया तो कुछ और आगे बोलो, वरना छोड़ दो वहां पे, तो देयर इज छोड़ नो दो, नीड टू राइट। टेक तो एवरीथिंग ये दिस पर्सनली, ये ओनली भी विल होता है। वर्क, दिस ओनली विल वर्क बिहेवियर्स। जी इस तरह के बिहेवियर्स में सोशल स्टोरी, सोशल क्लूज हैं सारे, जी जी है ना। तो सोशल स्टोरी और अच्छी लिखनी होगी, और थोड़ी सी जी उसके जी मैम, उसके मेच्योरिटी लेवल पे, चाइल्डिश नहीं लिखना है। जी ಇಲ್ಲ ಅಪರ बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं அவங்கள श्रद्धा जी और बिल्कुल। अच्छी सोशल थैंक यू, स्टोरी लिखते हैं। ओके இல்ல अशोक जी, यू 6:15 वांट टू தான் से வருவாங்க. समथिंग? थैंक यू। Yeah, ma'am. या Am I audible? या यू आर ऑडिबल। Yeah. It's regarding my son who is now adult, 28-year-old. या Since the time of schooling, when he used to go for the tuition, he used to go with the normal kids also. One of his friend who has voice of probably pitching like a girl. So he अच्छा always used to mimic him. Now अच्छा the thing is, his thing is like my son has got a habit of speaking like him only. Anything we ask,
He'll say in a regular tone and again come out with a female tone. अच्छा. And he does it very, very regularly. Actually, what is the problem? I'm not getting it. उसका दूसरे की आवाज निकालता है. Okay, he does the mimicry. या बट वो लड़का है जिसका आवाज लड़की के जैसा था और उसका मिमिक्री वैसा करता है, तो उसको वो हैबिट ऐसा हो गया है कि वो खुद अपना आवाज भूल के छोड़ के उसकी आवाज में जवाब देगा हमेशा. So it happens only when you ask something, asking any question, or other times also. Yes. When you ask any question. When we ask. Okay. Yeah. So what you can do? Otherwise, I did this type of behavior management. I did once. एक छोटा girl आती थी, तो what she used to say, उसको accent पसंद था English वाला, तो whenever we ask ना, what is she doing? She is करके like that, ऐसे करके बोलना, बहुत accent बना के. What I did, I stopped asking the question. I just showed the card and I stopped asking the questions and उसको proper prompt करके answers लिया. So what's your name? तो वहां से आने वाला है, my name is like this. So what I did, I stopped asking what is your name. Deliberately I was doing that and gradually it stopped. So I asked her what I didn't ask. I just showed the question. She can read. तो मैंने पूछा नहीं और उधर से आने वाला था वो accent and she replied normally कि my name is this. जैसे question पूछे थे, the triggering command was asking any question. If you are asking anything and is replying like that, stop asking anything कुछ दिन तक and just show the card or the thing which you want to ask. कुछ दिन ऐसे करना है नहीं, behavior modification में this will work. You cannot use social It's not because of asking, but it's not only at the time of asking question. It's a regular conversation also. Regular conversations in morning or in the afternoon or evening. How are you? What are you doing? If you ignore that, going to gym and all. अच्छा, what we can do, we can ignore that. Then he will continue. Oh, then he'll ignore. Continue. Ignore. Then he'll continue only. If he that is getting converted into attention seeking, na? You ignore and ignore and ignore. And एक कार्ड पे लिखिए stop talking like this, और जैसे वो समझे या कुछ ठीक से बोले, reinforce that particular point उस जगह पे. Yes, we were saying something. अगर वो ठीक से आए, you will have to ignore. and उसको उसने ये behavior को attention seeking में convert कर लिया. Because हमने कई बार देखा है वो करता है खाली हमारे साथ, अगर बाहर किसके साथ बात कर रहा है तो ऐसा नहीं करेगा. because he's not getting attention for that thing बाहर. It is becoming attention seeking. Yeah, he's doing for attention. He's doing for. अगर वो क्या कहते हैं? Say no also to that. No. Don't speak. Shouldn't say no. If he you are saying something, that, ऐसे कर लो आप, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो. But it's very difficult. We don't answer to him or we don't stop conversation with him. Stop conversation with him. Not only stopping the conversation, you don't look at him also. Don't look at him. Don't give any smile. Don't give any expression. Nothing like that. ये बहुत देखी हुई चीज है. ये सारी चीजें आप तो उसका conversation कर रहा है. People are urinating on the bed. 25-year-old, 26-year-old, high functioning, doing wonderful in computers and all, very good in mobile and all, sare digitals, and doing that thing on bed just to get the attention. Breaking all the switchboards just to take the attention. अपना हेड को बैंग कर रहा है just to get the attention. And head banging भी इतना ज्यादा है कि यहाँ पे bruises, सब चोट लग जा रहा है just to get the attention. अब आपको अपना सर मार रहा है तो आप कुछ तो भी बोलोगे जाके, कुछ तो करोगे कि उसको चोट लग रही है. Yes, it's for attention. ज्यादा अगर आपको बोलना ही है तो एक कार्ड में stop, या आप लिखिए कि अगर और ज्यादा समझ रहा है तो if you stop, I will look at you. You stop, I'll talk to you.
स्टॉप, यस स्टॉप सिर्फ लिखिए, वट एवर द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स, एक सेंटेंस या वन वर्ड, या फिर सिर्फ पिक्चर समझ रहा है तो एक्शन में करके आप कैप दिखा दो बिना उसको देखे, एंड कीप ऑन शोइंग दैट। He'll look at you कि अरे इनके चेहरे पे नो एक्सप्रेशंस आर कमिंग, oh no expressions are coming, he'll repeat and repeat and he'll go, कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, and it will take some time, it will not going to happen in a single day or night, एक दिन में नहीं होगा, पर आप वो करेगा, वो और ज्यादा बोलेगा जिससे कि आप देखो ही देखो। When you put any attention giving behavior on extension, behavior will first increase, it will not decrease. But if you are consistent in giving the attention, in not giving the attention, then only it will decrease. तो अभी हम लोग, और किसी का है कि we should go back to our PPT? Ma'am, this switchboard you said, na? Banging the switchboard. Yeah. Banging the head against the wall. No. हाथ से ना वो switchboard breaking the switchboard. Yeah. तो उसका attention seeking. How do? I mean, it's dangerous also, na? Dangerous also. Parents used to do, वो उन्होंने पूरा स्टैम्प वो करा दिया, पूरा कवर करके लकड़ी से, तो he used to वो किसी चीज से था तो वो निकाल देता था, देन अभी कुछ वैसा अरेंजमेंट किया है कि लकड़ी के सारे बोर्ड बहुत बड़े बड़े से बनाए हैं। हमने 2 रूम में ना एक्चुअली रिमोट कंट्रोल यूज किए हैं, पूरा स्विच बोर्ड को ही ना ऊपर रूफ की तरह हमने शिफ्ट कर दिया है। तो वो दैट यू हैव वर्कड ऑन एंटीसीडेंट्स। और टीवी तो रहती ही नहीं है, वो तो दीवार पे देखते हैं टीवी, क्योंकि टीवी तो 3-4 टूट चुकी है। Yeah, so these sort of behaviors now, how do we tackle, ma'am? This is also attention seeking, and if you are actually the key thing is कि आप कितना अपने बच्चे को बिजी रखते हो क्वालिटी टाइम में आपके अलावा। 24 hours, ma'am, in a day. हाँ 24 बस नहीं तो रात में वो आपके पास है, दिन में वो किसी थर्ड पार्टी अप्रोच पे जाए। अब वो किसी और के साथ आप देखोगे वो बिहेवियर्स नहीं होते हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। नहीं हो रहा है। वो हर के साथ यही है। They show behaviors only for whom, जिनके साथ they are getting the attention, and parents के साथ तो attention मिल रहा है, teachers तो stop giving, automatically they are not giving attention, बाहर का कोई third party। This attention seeking is the most difficult thing to attend, ma'am. It's a very difficult thing. So that's why work on antecedents जब वो बच्चा है, when he is very small, work on antecedent. Don't let any behavior get strengthened just because अपने attention consequence पे work करके, if you are strengthening any behavior, then only it becomes problem. Behavior आ रहा है, ये stop कर देना है। अभी हम फिर से चलते हैं। दीपाली, आपका क्वेश्चन है। दीपाली, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं एक काम करूं, मैं इस पीपीटी को कंप्लीट करके आपका क्वेश्चन दूं? ओके मैम, चलेगा, कोई बात नहीं। क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। ओके मैम, ओके। So consequence इसलिए तो important है। It follows any behavior, and people in the environment, whatever they are doing, some people are arguing you, या कुछ किसी को डांट रहे हैं, मार रहे हैं। अच्छा, शेयर ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंसेस, सोचो कॉन्सिक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चंस आए तो पता लगा ना कि सबके कॉन्सिक्वेंसेस पे ही प्रॉब्लम हो रहा है। So stop giving attention for the conversation, stop giving attention for the breaking of switchboards, stop giving attention when the child is urinating public place पे या कुछ ऐसा कर रहा है। ठीक है, और कई बार पनिशमेंट वर्क करता है, बट नॉट ऑलवेज। फिर से हम आ जाए। अच्छा, बिहेवियर सिर्फ बड़ों में ही नहीं होता है, छोटा सा न्यूली बॉर्न ऑल्सो shows behavior. Baby is crying, suppose baby is crying, he is non-verbal, he cannot communicate, he cannot speak, he is very small, लेकिन तब भी वो communicate कर रहा है। Now the baby is crying and he wants to be rocked. Now what is the function of the behavior here? He is also showing behavior. बताइए। A baby is crying and he wants to be rocked.
Attention seeking. Na, there are 5 functions of behavior: attention seeking, tangible, sensory, escape, medical. Wants to be rocked. Rocking क्यों होती है? Rocking क्यों कर? Vestibular. Sensory a function of the behavior. And if the baby is crying and if he wants milk, देखिए कितना थ्योरी कितना इजी लगता है, जब प्रैक्टिकल पे आता है तो सब. When he wants milk, what is the function of the behavior? अरे, he wants milk, what is the function of the behavior? Need being Need, basic need. So what is the function of the behavior? Technically हमें वो term चाहिए. Attention seeking. Tangible. Yeah, tangible. And what is the function of the behavior? If he wants his diaper to be changed. अब ये टफ हो गया. अब आप लोग दिमाग लगाओ. Baby is crying. Maybe, not exactly. हमने ये सोच के नहीं लिखा है. Escape from diaper. The function of the behavior here is escape. Right? The baby is crying and he wants to be talked to. ये सबको पता होगा. अभी इतनी सारी बातें हो चुकी. Attention seeking. Attention seeking. Attention seeking. Attention seeking behavior हम सबका भी होता है. Each and every person जो हम सब social है ना, बहुत सब attention seeking behavior है. सबका है. उनका तो और होता है. So behavior is communication, right? ये हम आपको बता चुके हैं 5 चीज. फंक्शनल असेसमेंट हम जब करते हैं तो उसको कहते हैं ABC डूइंग देते हैं. ABC मेथड. व्हाट इज ABC मेथड? एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस को जॉट डाउन करते हैं और उसी पे बेस्ड हमारे इंटरवेंशन प्लान्स बनते हैं, IPs बनते हैं बच्चों के. जो हम थेरेपीज लेते हैं ना, जो हमारा IPs बनता है वो भी ABC पे ही है. और जो हम बिहेवियर मैनेजमेंट जो बिहेवियर्स आ चुके हैं ऑफ द टेबल वो भी हम ABC के थ्रू करते हैं. तो इट प्रोवाइड्स अ बेस लाइन फ्रॉम विच टू determine the effectiveness of the intervention. Unless and until हर बच्चे का कोई particular behavior, particular situation पे हम antecedent ही नहीं जानते, हम triggering point ही नहीं जानते कि उसको कहाँ, तो फिर हम क्या उसका intervention plan बनाएंगे? हम कोई टीचर लगा देंगे थेरेपी के लिए और टीचर की वॉइस से ही उसको प्रॉब्लम है, तो यहीं पे ही एंटीसीडेंट फेल हो गया. वो हर बार इंस्ट्रक्शन देगा, हर बार उसको प्रॉब्लम हो उस इंस्ट्रक्शन से, तो फिर क्या थेरेपी चलेगी? ठीक है. सो एक पर्टिकुलर बिहेवियर दो सिचुएशन पे अलग अलग टाइम पे हो रहा है, तो फंक्शन में ऑल्सो डिफर ऑल्सो. सो स्क्रीमिंग इन द टॉय स्टोर, आई वॉन्ट अ टॉय, फंक्शन ऑफ द बिहेवियर टैंजिबल है, या उसको कुछ चाहिए, ही नीड समथिंग. बट इफ ही इज स्क्रीमिंग इन स्कूल एंड दिस वर्क इज टू हार्ड राइट नाउ, स्क्रीमिंग तो दोनों तरफ है, तो सिचुएशन चेंज हुई है, तो यहाँ पे फंक्शन हो गया escape. सेल्फ इंजुरी हो रहा है, आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन, या आई वांट अ ब्रेक. आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन है तो सेंसरी उसको प्रॉब्लम हो रहा है, आई वांट अ ब्रेक उसको एस्केप है फंक्शन ऑफ द बिहेवियर. या फिर इफ ही कीप टेलिंग मी नॉट टू डू दिस, आई लाइक द अटेंशन, तो यहाँ पे फंक्शन अटेंशन सीकिंग है. अग्रेशन दिखा रहा है टू अपीयर व्हाइल प्लेइंग, आई वांट अ टर्न चाहिए, तो टैंजिबल है, उसको कुछ चाहिए. तो बिहेवियर जब भी ABC करते हैं तो बिहेवियर को डिफाइन करना, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन एंड हाउ इंटेंस, व्हाट डज इट लुक लाइक, ये का इन क्वेश्चन का आंसर बहुत स्पेसिफिक पर्टिकुलर हमें चाहिए. जो फेमिलियर नहीं है उन्हें भी 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में ये आंसर मिल जाना चाहिए. What was the, when was the onset, has it happened before, under what circumstance, या कितनी बार ये हुआ है, कितने एक ईयर में, या कौन कौन से इवेंट में, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, वेयर, वूम एंड व्हाट एक्टिविटी, और जो बिहेवियर के जस्ट बाद होता है उसमें भी क्या क्या हो रहा है. एनवायरमेंटल एनालिसिस भी हम करते हैं कि कौन से सेटिंग में बिहेवियर ऑब्जर्व हुआ है, एंड आर देयर एनी सेटिंग्स
जहाँ पे बिहेवियर डजंट अकर एट ऑल, वो भी देखते हैं। बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान्स में बिहेवियर विच नीड्स टू बी चेंज, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे क्लियरली, एंड वी डू अ कंप्लीट फंक्शनल एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और ड्यूरेशन लिखेंगे, रीइंफोर्समेंट असेसमेंट होगा, हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे कि कौन से बिहेवियर पे मैं देना है एंड कौन से पे रोकना है। तो होता क्या है ड्यूरिंग थेरेपी, वंस वी नो कि हमें रीइंफोर्स करना है, वी कीप ऑन रीइंफोर्सिंग सारे बिहेवियर, ढक 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 अरे जहां पे नहीं देना है वहां नहीं भी देना है। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट भी तो होता है, कहाँ पे कम देना है, कहाँ पे ज्यादा देना है, सब रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड करता है। तो आप जहाँ पे उसको आई हुई चीज है और स्किल्स आप मेंटेन कर रहे हो, उसमें भी आप रीइंफोर्स कर देते हो, और एक्विजिशन पे है कोई चीज टारगेट, आप उसमें भी आप रीइंफोर्स कर रहे हो, तो कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए, कैसे उसको पता लगे। तो जो आप सिखा रहे हो नया स्किल, उस पे आप थोड़ा थोड़ा रीइंफोर्स करेंगे, जो उसको आ चुका है, जो आप मेंटेन कर रहे हो प्रैक्टिस के लिए, उस पे आप कभी करोगे कभी नहीं भी करोगे। These are the hypotheses. Develop strategies for teaching new behaviors. Okay. Desired behaviors को reinforce करना है, डाटा कलेक्शन आप करते होगे, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है, कोई कम्युनिकेशन बोर्ड से समझता है, पिक्चर से समझता है, ऑब्जेक्ट से क्लूज लेता है, या इंस्ट्रक्शन से क्लूज लेता है, मतलब रिटन वर्ड समझता है, ये देख उसका क्या लेवल है। ठीक है, एंड इट्स ऑब्वियसली इट्स अ टीम वर्क। तो उसका ओटी क्या चल रहा है, उसका एबीसी कौन किया हुआ है बिहेवियर का, और उसका एबीए थेरेपी किससे हो रहा है, सबका व्यूज एक साथ मिलके एक फाइल बनता है, और सेम जो जो चीजें फॉलो करनी है किसी बच्चे के साथ, वो सारे थेरेपिस्ट फॉलो करेंगे, तब वो हो जाके एक प्रॉपर प्लान बनता है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको क्लियर हो गया है? किसका क्वेश्चन था? दीपाली, आपका क्वेश्चन था? Yeah, I have a question. हाँ, इसके इसके पहले कौन था? उमा जी के पहले। हाँ हाँ, हेलो Shall I मैम। ask? Wait. Yeah, wait. हेलो मैम। हाँ हेलो दीपाली, फिर मैं उमा जी का लेती हूँ। हाँ 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 मैम, मेरा बेटा है 25 ईयर का है, 25 ईयर्स का है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ बताए। हाँ हाँ हाँ, तो मैम वो ना खुद को बहुत ज्यादा हिट करता है, पेट पे मारेगा, आइस पे मारेगा। आइस पे तो इतना हिट किया कि उसे कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हो गया अभी, और सर्जरी के लिए बोला है। लेकिन उसका वो हीटिंग कैसे कम करे ना मैम, हमेशा शुरू रहता है। कुछ गुस्सा आ गया, कुछ मोबाइल पे कुछ अलग सा देख लिया उसने, कुछ फोटोज देख ली। अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो मतलब लड़कियों के लिए थोड़ा सा वो, मतलब अगर दिखता है तो कभी कभी कमर पे हाथ लगा देता है, मैं हाथ लगाऊं क्या ऐसे बोलता है। कभी कभी मतलब बंद भी कर देता है, तो मतलब समझ में नहीं, कभी कभी इग्नोर भी किया, कभी डांटा। अभी वो 24 इयर्स का ओल्ड है, कहीं जाता है या कुछ उसका शेड्यूल है क्या उसके, जो हाँ, उसको? बीच में 3-4 साल नहीं था मैम। अभी अभी तो वर्कशॉप जाता है, वो वाशी में शेल्टर वर्कशॉप है, हम्म तो उधर जाने लगा है अभी। मतलब 6 घंटे के लिए तो बिजी रहता है वैसे वो। हम्म। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है उसका, लेकिन यही बिहेवियर का ही ज्यादा इशू हो जाता है उसका। तो ये बिहेवियर हिटिंग वाला ये कब होता है? जब वो वर्क प्लेस पे रहता है या जब आपके साथ रहता है? कभी भी मैम, कभी भी होता है। वो मैम ने भी बोला कि अगर वो कुछ काम भी कर रहा है ना, लेकिन फिर भी वो हिट करेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ हुआ और हिट किया, मतलब दिमाग में क्या आता है पता नहीं, फिर हिट करने लग जाता है। अपने आप को हिट करता है। अपने आप को, अपने आप को। तो हमें ये तो एंटीसीडेंट तो पता लगाना पड़ेगा कि कोई कुछ वजह होगी। अच्छा। तो या तो सेंसरी इनपुट चाहिए, कई बार हाँ। प्रेशर इतना चाहिए होता है कि लोग हिट करते हैं, जो हेड बैंगिंग दिखती है वो बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है और वो हिट करते हैं। पेन थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा होता है तो उनको पेन होता नहीं है। सेंसरी आप मतलब बोल रहे थे, वो हो सकता है मैम सेंसरी का, क्योंकि और लेकिन कोई उसे तो। ट्रिगरिंग चीज हाँ। पता नहीं लग रही है मुझे आंटी, आप कह रहे हो नहीं कभी भी नहीं। ऑल ऑफ अ सडन हो रहा है, कोई भी रहे कभी भी। हाँ, कभी भी कर सकता है, बीच में शांत है फिर भी मारेगा, कुछ काम कर रहा है फिर भी कर सकता है इसे। और हम्म, आईज पे? हाँ, आइस पे, पेट पे, पीठ पे, वॉल पे ऐसे जोर जोर से करेगा हाथ हम्म से। हम्म। तो बाकी आई का तो ठीक आई है। हाँ, टेस्ट कराया है आपने? मैम कह रहा है ना, वो कैटरेक्ट बोला है उसे अभी, हाँ हाँ। लेफ्ट आई को, तो अभी उसको ऑपरेट करना है। तो उसको कंसंट्रेट करने में दिक्कत भी तो, पेन भी होता होगा ना, वो कुछ कह नहीं पा रहा है, ये भी है दिक्कत अभी। लेकिन मैंने पहले से उसे आइज मतलब हमेशा डॉक्टर के पास लेके गई थी कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं है, हैबिट है।
अच्छे वो अच्छे अभी डॉक्टर तो वो दिखाए। उस वक्त तो कुछ और प्रॉब्लम फंक्शन हो, कुछ और वजह होगी जो वो मार रहा है, ठीक है, मे बी सेंसरी या अच्छा। कुछ भी। ओके लेकिन ओके। अभी तो वो दर्द हो रहा है, अभी तो ये है कि उसको कैटरैक्ट है, उसको पेन हाँ हो रहा है। मैम। तो हाँ हाँ। उसको कॉम्पेंसेट, उसको वो करने के लिए हो सकता है वो हिट कर, अभी तो यही समझ में आ रहा है। बाकी ये पता ओके। लगना चाहिए कि वो कर, हमें को प्रॉपर एंटीसीडेंट और वो पता लगना चाहिए कि क्या हो हाँ, रहा है सिचुएशन में। मुझे कभी कभी ऐसा ऐसे तो नहीं लगता है है, मतलब। हाँ हाँ ऐसा हाँ तो नहीं अब। कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही हो जो उसके लिए बहुत टफ है या इंटरेस्टिंग अच्छा नहीं है। अच्छा। अच्छा। बहुत टफ है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जैसे हमारे पास जो आते हैं बड़े, तो जिसको ज्वेलरी में बहुत इंट्रिंसिक वर्क है, तो अगर वो ओके। वर्क सबको कराने तो सब नहीं एंजॉय करते। बराबर है मैम। तो ये तो देखो कि कौन सी एक्टिविटी पे वो, ये थोड़ा सा आपको पता लगाना होगा कि कौन से टाइम पे, कौन सी एक्टिविटी पे, या कौन से इंस्ट्रक्शन पे उसको प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कुछ वॉइस बॉदर कर रही है तो। हाँ हाँ, इंस्ट्रक्शन में है मैम कुछ वर्ड्स ऐसे कि जो बोले ना तो उसे वो पसंद नहीं है। ये वो देखो, बोलता है कि ये आई वाला ऐसे वो नहीं क्या बोलना है। चीज है, हाँ वो क्या चीज है हाँ। वो इंस्ट्रक्शन। लेकिन मैम वो वर्ड ऐसे ना अगर मैं नहीं यूज करती लेकिन बाकी लोग तो हमेशा यूज करेंगे ही ना। पर मतलब कुछ मला। पर्टिकुलर जी। वर्ड्स हाँ आप हाँ। अगर पता लग रहा है तो यू जॉट डाउन दैट वर्ड्स एंड ओके। उनको बता दो कि डोंट यूज दैट वर्ड, या बिल्कुल चुप रहे। अगर वो वर्क अच्छा। प्लेस पे जा रहा है और इंडिपेंडेंटली इफ इज वर्किंग, तो हम्म। स्टॉप गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन। एक तो इंस्ट्रक्शन का जो तरीका होता है वो भी बहुत बॉदरिंग होता है, बहुत हाँ हाँ हाँ, मुझे टोन कमांडिंग होता पसंद है। नहीं, किसी किसी का टोन हाँ पसंद नहीं, ऐसे बोलो बोलता है, धीरे से हाँ, बोलो जो देखो भी। वो सारा कुछ तो वो बता ही रहा है। तो हाँ। सॉफ्ट स्पोकन करवा दीजिए, कुछ दिन ये करके देखिए कि धीरे बोले, कोई ओके गर्ल की वॉइस हो या बहुत धीरे, या मत बोले। लिख पढ़ ओके। सकता है तो लिख दे, और अगर पढ़ नहीं सकता है तो एक्शन पिक्चर रख दे वहां पे आपके पढ़ इंस्ट्रक्शन। सकता है मैम, अच्छे से आईटीआई किया है उसने तो कोपा बस में। ठीक है, तो आप उसके टेबल पे ना एक शेड्यूल हाँ। लगा के देखो, एक टेबल पे ही ओके। इनबिल्ट शेड्यूल, जिसमें वो लिखा भी हो और पिक भी बनी हो, और जो उसके बगल में उसको हटा दीजिए। कई बार जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है या जो पास में है, वो उसको हम्म। बर्दाश्त नहीं करते कि कोई पास में आए। ओके ओके। तो ये चीजें कुछ जो बॉदर करती हैं वो चीजें ही पता लगाना। बाकी और क्या करता है ये, मुझे अभी तक में ये पता लगा कि उसको लाउड इंस्ट्रक्शन से शायद है, तो हाँ इंस्ट्रक्शन हाँ। मत दीजिए, उसको इंडिपेंडेंटली शेड्यूल डाल दीजिए, या कोई शेड्यूल नहीं है, वो एक ही वर्क लगातार करता है तो वर्क लगा के कितना करना है और वहां से हट जाए। बहुत उसकी ओके मैम। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ढेर सारे लोग ना आए। हो सकता है अच्छा कोई सेंसरी इशू हो जो इतना ज्यादा क्राउड से उसको मिल रहा हो, वो उसको परेशान कर रहा हो। अच्छा। ये इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन, वर्क प्लेस पे तो दूसरे लोगों को भी लोग कुछ कुछ बात कर ही रहे होते हैं। बराबर मैम। थोड़ा सा अलग से कोना दे दें, एकदम अलग नहीं पर थोड़ा अलग, और वो हम्म। इंडिपेंडेंटली काम करे, वहां कोई बहुत बार बार इंस्ट्रक्शन देने ना जाए। कई बार क्या होता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है काम में और बहुत फोकस होके कर रहा है, और उस बीच में भी कोई डिस्टर्ब करता है तो उन्हें नॉर्मल लोग से ज्यादा परेशानी हो जाती है। ओके मैम। और मैम अभी उसका है ना कि हमेशा टोन मतलब मुंह से हमेशा आवाज निकलता रहता है, सुख इसे जोर जोर से करेगा, वो मतलब कोई कंटिन्यूअसली। इसको हाँ। वर्बल स्टिमिंग कहते हैं। कई बार बराबर से। दूसरे, वही बात है ना, या तो दूसरी कोई हम्म। आवाज उसको परेशान करे जिसको कट करने के लिए वो मुंह से निकाल रहा है। ओके ओके मैम। ओके ओके। कई बार कोई वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन दूसरे लोग की परेशानी की वजह से वो स्टिमुलेशन ना हो, तो हम कुछ करें। ओके मैम। ये है, तो वो वर्बल पे अभी फोकस न रही, अभी तो उसका एक अलोन एरिया करके, लेस ऑफ इंस्ट्रक्शन करके, और कुछ बताना है तो पिक्चर्स या रिटर्न में पढ़ सकता है वो, तो लिख दीजिए एंड मूव अवे फ्रॉम हिम। ऐसा अगर आप वहां, यही तो होता है शेल्टर्ड वर्कशॉप, कि जिसमें ओके आप मैम। बच्चे के अकॉर्डिंग उसको वो सिचुएशन दे। अब किसी अच्छा। बच्चे को बहुत लाइट चाहिए और आप डार्क में बैठा दियो तो वो उसको प्रॉब्लम करेगा, या किसी ओके बच्चे को डार्क चाहिए और आपने बहुत लाइट में बिठा दिया तो प्रॉब्लम होगा। किसी को बहुत प्रेशर चाहिए, बड़े होने पे भी लैप पे या थाइस पे बहुत प्रेशर चाहिए और आप काम करा रहे हो, अब वो आपको बोले कैसे। तो लैप पे या थाइस पे आप कोई प्रेशर वाला मोटा चादर या कुछ वो मिलते हैं, मैट भी मिलते हैं, वो रख वेटेड। दो, हाँ। वेटेड कुछ रख दो। तो वो पता ओके। लगाना पड़ेगा कि उसको कौन सा सेंसरी, पहला तो आप ये करो, ये तो सब पे वर्क करेगा। उसके लिए अलग जगह, एक अच्छा। बिना किसी इंस्ट्रक्शन के अकेले काम करे, और अगर हेल्प चाहिए तो वो खुद बुलाए, और उसमें भी बहुत सॉफ्ट टोन पे। ये तो सबके लिए है, जनरल है। यूज अच्छा। लेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यूज मोर पिक्चर्स, जेस्चर्स यूज करिए, और आपके टोन सॉफ्ट रहे।
ओके मैम, ओके ये मैम। करो आप, फिर आपको और हमें बताना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, तब हम उस पे कर पाएंगे। काम। ओके मैम, नेक्स्ट थैंक किसका? यू। उमा, आपका था क्वेश्चन? हाँ मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी Yeah, जी। my son मेरा is भी एक 20 क्वेश्चन है। years old. He's in the spectrum and he has got OCD. Like if he sees the switch in a particular position for the first time, it has to be always like that, whether it's day or night. Light has to burn. In his school, he has seen the switch in the off position, and it always has to be in the off position. So it is ओहो, he T-shirt. always like the light off रहे हमेशा। No, no, it is not a question of off or on. It is a question of the position of the switch. ओहो, And same color T-shirt, same color thing, only अच्छा daily अच्छा, use. फिक्सेशन राइट। My तो husband जब has सेम कलर तो चल जाएगा, सेम पोजीशन पे स्विच रहे, सोशल स्टोरी यूज करना पड़ेगा। ये बहुत पर्टिकुलर ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। सेम टिफिन चाहिए, सेम तो पोजीशन पे बैठना है, सेम जगह पे जाना है, बड़ा सेमनेस चाहिए। तो वो सेमनेस को ब्रेक करने के लिए, जब हम, आपका बच्चा कितना बड़ा आपने बताया? I don't understand Hindi, sorry. I know. How old is he? 24. He is 24 years old. ये this is the behavior आपकी, he needs sameness. This is the need Yeah. for sameness, and this is the fixation for any same things. So you can use social stories for that, and also simultaneously social story we'll use, and we will also structure the routine. ऐसे हमें structure करना है routine कि we will fix the things. First we will fix the routine, उसका fixation हो जाएगा, then we will deliberately break any routine in between two cars. We will use schedule. For Okay. 24-year also, we will first use the schedule. We will fix the activities for him, and that is his strength. He will follow very nicely because he is fixed. He has the necessity to fix everything. But when he gets used to following that fixed schedule, we will deliberately insert one card which is unfixing that. So we will break that schedule, or beach make schedule we will insert which is breaking that schedule. He will show some tantrum or behavior. थोड़ा शुरू में starting में he will show some tantrum, and gradually he will learn कि दो schedule के बीच में break आता है sameness का। तो while doing that, धीरे धीरे हम जब कर रहे हैं gradually, then we will forcefully break the schedule, break the things. We'll break the sameness की same t-shirt पहनना, and we'll force him to wear another color t-shirt or another color tiffin, whatever fixation he has. We will break that. But first we will fix the schedule for him. We'll go with the strength, and we'll insert in between two cards the schedule है आपको अलग से, you will have to take the training for schedules. Schedules एक बहुत important topic है. So you need to train yourself how to make him follow the schedules, how you make schedules for picture schedule or for written schedule, how you get them in a habit to follow the schedule, and when they are used to following that schedule in a particular way, then we insert any card which is breaking in between two cards, which is breaking the schedule. दो के कार्ड के बीच में, then 4 cards के बीच में, then 6 cards के बीच में, and then he will learn to break the sameness. Okay. So you have to use, देखो यहाँ पे शेड्यूल भी आ गया, सोशल स्टोरीज, सारे टॉपिक्स कवर हो गए, और टॉपिक था आज का behavior management, and all the schedules and the social stories and instruction and sensory all are coming धीरे धीरे. So it's an ocean, it's a पूरा मिला जुला जाल है। मैम बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank थैंक you. यू। Lakshmi also raised her hand. अच्छा, we are continuing tomorrow also. So what's the time now? तो हम लोग कल भी क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, या आज ही करना है, क्योंकि कल भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चंस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पीपीटी चलेगा। तो आदित्य ऑल्सो रेज्ड हिज हैंड। अच्छा चलो करो, 2 क्वेश्चंस आए, आप करिए। आदित्य, अभी पहले कौन बोला था? मैं मनोज बोल रहा हूँ। मनोज, हाँ बताएं। 14 ईयर्स का मेरा बेटा है, उसका ऑटिज्म है।
एक्चुअली उसका जैसे मैं ऑफिस से जब आता हूँ शाम को 6:30-7 बजे, तो उसके बाद में फिर मैं बाहर नहीं जा सकता ना, वाइफ को वो अलाउ करता है। जैसे कुछ ग्रोसरीज देने के लिए मेरे को जाना है, हम्म इधर मेरे को या वाइफ को वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि वो बाहर जाए, मतलब सब्जी लेने के लिए, कुछ भी चीज मेरे को बाहर लानी है। तो या तो फिर उसको कन्विंस करना पड़ता है कि मैं फिर ड्रेसअप होके प्रॉपर जाऊंगा, जैसे कहीं ऑफिस जाने का उसको एक रहेगा कि तब अलाउ करेगा, हाँ आप जाइए करके, अदरवाइज मतलब मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है हम लोग को। जैसे मैं ऑफिस से आ गया उसके बाद की बात बता रहा हूँ, मैं और चाहता उसके कि घर बाद में क्या सब। करता है? मतलब नहीं अलाउ करता, लेकिन और क्या करता है? नहीं, वो चाहता है कि हमारे साथ में ही रहे, पापा मम्मी साथ में ही रहे, भाई के साथ मतलब रहे कितना मतलब। नॉर्मल है, कितना नॉर्मल बिहेवियर है ये, बताइए। मैम बहुत सारी चीजें हैं कि हमें मतलब बाहर निकलना पड़ता है ना, मतलब उसमें आई बहुत नो। दिक्कत होता है वाइफ को भी सोशल स्टोरी, मतलब। सोशल स्टोरी काम करेगी। छोटा है तो पिक्चर लेवल की सोशल स्टोरी होगी, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखेंगे, और सोशल स्टोरी वर्क करेगी। यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट सोशल स्टोरी। सोशल स्टोरी बहुत सही आनी चाहिए। Can you tell तो about schedule in the next session? Next session, the coming session, coming Saturday, Sunday, we can program like that कि हम वो वाला शेड्यूल का सेशन रख लें। तो मनोज जी, आपको सोशल स्टोरी पे काम करना है। सोशल स्टोरी तो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है पॉजिटिव वे में, और पिक्चर के साथ में, और साथ में रीइंफोर्स भी किया जाता है कोई उसका एक अच्छा बिहेवियर, कोई एक अच्छी मैम चीज पे। हम और जैसे कुछ कोशिश करते यहाँ पे हैं। भी शेड्यूल वर्क करेगा। जैसे ही आपके आने के घर के बाद मैम यू आर नॉट ऑडिबल। मैडम यू आर नॉट ऑडिबल। Not audible. सब 15 मिनट। Clear, clear energy. Clear, clear. सॉरी, ये बंद हो गया अचानक। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू जूम। तो अभी मैं गरिमा मैडम को दोबारा इनवाइट करता हूँ। तो यहाँ से आई होप यू, आप लोग सब थे मीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं आया था। मेरा मोबाइल में और दोनों में एक साथ बंद हो गया था।
मनोज जी आप हैं? अच्छा, तो क्या करना है, जब कोई चीज को हम ब्रेक करते हैं तो पहले उसको शेड्यूल, जब जो चीज वो कर रहा है, जो एक्टिविटीज, उसका 2-3 आवर्स का, जिस वक्त उसके टैंट्रम से बिहेवियर्स हो रहे हैं, किसी के लिए भी जनरल है, उसके थोड़ा पहले से लेकर थोड़ा बाद तक का आप क्वालिटी टाइम का शेड्यूल बांधते हैं और उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। अब उस दिन हम आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा पहले से आपकी वाइफ उसके साथ कुछ करा रहे हो, एनीथिंग, कोई एक्टिविटी जो उसके शेड्यूल में हो और वो कर रहा है, और बहुत रीइंफोर्स भी कर रहे हो मजे ले लेके, और उसके बाद आप आते हो, आपकी एंट्री होती है, वो वाला कार्ड भी है कि पापा आ गए, और पापा के साथ थोड़ा बात करेंगे, या आप साथ बैठ के चाय या नाश्ता जो भी करते हो वो वाला कार्ड भी रहेगा। 2 एक्टिविटी उसके मन की हो गई। तीसरी आती है, तीसरी में आएगी कि पापा बाहर जाएंगे, और उस दिन आपको नहीं भी जाना है तो आप 1-2 महीने जाओ, पापा बाहर जाएंगे। अब बाहर जाने वाली के टाइम के तुरंत बाद उसके साथ कुछ तो हो रहा होगा साथ में, वो वाला रीइंफोर्समेंट भरा हुआ एक्टिविटी आपको ये नाटक करने पड़ेंगे कुछ दिन। आप यहाँ पे कर रहे हो एक्टिविटी, एंड 3-4 कार्ड के बाद पापा वापस आएंगे, ये आपने करा डाला है वहां पे, और जब वापस आएंगे और बाकी के जो 3 कार्ड्स का अच्छे से फॉलो हुआ है, तो जो वापस आ रहे हैं वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट वाला कार्ड है, और उस वक्त आप उसको आधा घंटा देंगे। ये होता है शेड्यूल फॉलो करते हुए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए अपनी बात को मनवाना। आपकी बात वो कहने से नहीं मानेगा। हम ट्राई करते हैं, मगर जैसे हम कोशिश करते हैं कि जैसे वाइफ को, या मैं जैसे दूसरे रूम में चले जाऊं और वाइफ को बोलूं कि आप जो है इसको एंटरटेन करो, मीनवाइल मैं अपना होके आता हूँ, तो तो वो वो पीछे तो को आप हर रूम में नहीं, वो नहीं करेगा। यहाँ तो शेड्यूल काम करता है। तो वो व्हेन दे सी, दे आर विजुअल लर्नर्स, व्हेन दे सी डेली कि जब पापा आते हैं उस वक्त हमारा ये कोई काम हो रहा होता है, कब करते हैं मम्मी के साथ, वो वाला हमें करना है, और इसके बाद हमें ये करना, इसके बाद पापा आएंगे। तो व्हेन दे सी द शेड्यूल विजुअली, तब उनके यहाँ पे जाता है सर के अंदर कि अभी पापा आएंगे ही जरूर। एंड व्हेन दे सी दैट कि पापा इज कमिंग आफ्टर 3, हर शेड्यूल में स्टार्टिंग कार्ड होता है, 2-3-4 कार्ड, देन एक फिनिश कार्ड आता है। फिनिश आने में मेरे को भी टाइम है, कि पापा के आने में टाइम है, देन दे विल अंडरस्टैंड। एंड ऑल्सो हम फिर सोशल स्टोरी यूज करेंगे। सोशल स्टोरी खाली बिना कोई शेड्यूल फॉलो करना सिखाए, बिना कोई प्रॉपर क्वालिटी टाइम दिए बच्चे को, बिना उन एक्टिविटीज को रीइंफोर्स किए, जस्ट यूजिंग द सोशल स्टोरी, ऐसे काम नहीं चलते। फिर हम सोशल स्टोरी यूज करेंगे, पर पहले तो ये फॉलो करा लो। एटलीस्ट आप 4 घंटे नहीं कर सकते तो आपने आने के और थोड़ा बाद तक, आने के थोड़ा पहले से थोड़ा बाद तक वाला, और अगर उस दिन आपको नहीं भी जाना है बाहर तो भी आप जाओ, अभी आप जाओ, क्योंकि हमें यहाँ ट्रेनिंग चल रही है और इतनी ट्रेनिंग आसान नहीं है, सब कुछ ठीक साइकोलॉजिकल है, तो हमें थोड़ा नाटक भी साइकोलॉजिकल करना पड़ेगा। ठीक थोड़े दिनों डिफरेंट। बाद, 1-2 महीने बाद, 3 महीने या 4 महीने भी लग सकते हैं, वो इतना अच्छे हो जाते हैं ये शेड्यूल फॉलो करने में कि फिर तो जब आप आओगे तो वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसको वो क्लूज फॉलो करना आ जाएगा। विजुअल लर्नर है, जो भी चीज आप विजुअली सिखाओगे विदाउट गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन, वो ही फॉलो होगा। हाँ, एक्टिंग ही करनी है हम लोगों को, और और मैम इसका एक्टिंग बहुत रियलिस्टिक वे में एक्टिंग करनी है। वही मैं उसके हर एक्ट मतलब हर चीज का उसने एक पैटर्न बना लिया कि अगर उस पैटर्न से पैटर्न अगर थोड़ा बना भी ले, डेविएट होते हैं ना, तो तो हम डेविएट होने हम भी तो पैटर्न ही बनवा रहे हैं, हम अपने हिसाब से पैटर्न बनवा रहे हैं। दे फॉर्म पैटर्न्स। ऑटिज्म का प्रॉब्लम ही ये है कि वो एक पैटर्न सेट कर लेते हैं, वो पैटर्न जी। लंबा चलता है, 1-2 साल 3 साल, जल्दी ब्रेक नहीं होता आपके कहने से, डांटने से, कुछ और कि तुम उस कमरे में ले जाओ। दे आर वेरी स्मार्ट, उस कमरे में चले गए तो उधर से पापा आ जाओ, सब उसको पता है। हमें वो डांट तो समझता है, वो फिर एग्रेशन भी शो करता है तो कई वो, बार, तो लेकिन वो ही इज नॉट लर्निंग ना कि हमें पापा के आने पे ऐसे नहीं करना है। कैसे हम्म। लर्न कराओगे कोई चीज? आज आपने डांट दिया, आज वो मान गया, कल फिर किया, कल आपने डांट दिया वो मान गया, परसों फिर क्या आपने तो वो, अगर वो हर बार डांटने पे मान रहा है, और हर बार, एक तो कब तक डांटते रहोगे, और हाँ, वो मैं दूसरा कई देन बार इट विल एग्रेशन भी अगेन कन्वर्ट इनटू अटेंशन गेटिंग, तो वो अब जी। डांट के लिए करेगा। हम्म। ठीक है, डिफरेंट एक बार ट्राई करते हैं, दूसरा ये अलग आप से जैसा आप शेड्यूल बताए ना में सोचें। डालो। सारी चीज जी। की जड़ ये है कि आपका बच्चा, सारे लोगों के लिए है ये,
आपका बच्चा है चाहे बड़ा है, क्या जिस समय बिहेवियर हो रहा होता है आपको थोड़ा पता लगेगा कि इस समय ये बिहेवियर ज्यादा, क्या वो उस समय उसका रूटीन क्या है? क्या वो पार्क जाता है, साइकिल जाता है, फुटबॉल जाता है, किचन में काम कराती है मम्मी के साथ, वॉशिंग मशीन में कपड़े है तो पार्क जब कुछ तो एक रूटीन डालिए, उस वक्त नहीं है तो डालिए। और जब आप रूटीन डालते हैं शेड्यूल में तो आपको फॉलो थ्रू भी कराना पड़ेगा। अब आपने लिख दिया फुटबॉल, तो वो अकेले थोड़ी फुटबॉल खेलेगा, आपको लगना पड़ेगा, लेकिन थोड़े दिन आपको लगना पड़ेगा। आप वही चीज डालो जो आप जिसमें आप लग पा रहे हो, और जिसमें आपको ब्रेक देना है जिस वो एकदम लास्ट में डाल दो। एकदम से तो हम पापा को फेड नहीं कर सकते ना उसकी जिंदगी से, तो लास्ट में डालो। और लास्ट वाले एक्टिविटी जब पापा मिलेंगे तब तक के लिए वो 4 शेड्यूल फॉलो कर रहा है, तो वो चीजें भी तो लर्न कर रहा है। ये तो सबके लिए है। शेड्यूल क्वालिटी टाइम पे फॉलो अगर कोई बच्चा कर रहा है तो आपके 90% तो प्रॉब्लम वैसे ही सारे बिहेवियर हट जाएंगे, फिर आप बिहेवियर बोलोगे ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं बिहेवियर। वो आ ही इसीलिए रहा है कि उसको कुछ और है नहीं, पापा से मिलना है, कुछ और है नहीं तो ये करना है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप 13 घंटे शेड्यूल फॉलो कराओ, लेकिन एक्चुअली ये मेक श्योर कि यू फॉलो द शेड्यूल एट दैट टाइम, उसके थोड़ा पहले एंड उसके थोड़ा बाद, जिस समय पे चाइल्ड इज शोइंग मैक्सिमम टैंट्रम्स एंड बिहेवियर्स, उस आवर में तो शेड्यूल डाल सकते हैं आप। पूरे ट्राई दिन करते हैं आप, मैम ऐसा हाँ करना जी। आप पूरे दिन शेड्यूल नहीं फॉलो, हालांकि हम लोग करते हैं, वी नॉट फॉलोइंग द होल डे शेड्यूल, एटलीस्ट फॉलो फॉर 2 आवर्स और फॉर 3 आवर्स, जितने में आपका वो बीच में वो पढ़ना चाहिए, वो फेज जिसमें बिहेवियर आ रहा है। वो 12 बजे अगर वो बिहेवियर आता है या शाम 5 बजे, 5 o'clock if the behavior is coming at 5 o'clock, you'll have to make the schedule putting that 5 o'clock in between. So start the schedule from 4:30 or 4 or maybe जो भी आपके पास टाइम, एंड 5 o'clock का in between पढ़ा है, then 6 o'clock तक वो अच्छा जा रहा है, and then the child is getting that any kind of reinforcement here, you are the reinforcement for him. मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं शॉर्ट ड्यूरेशन का शेड्यूल मैं तैयार करूं, उसके बाद फिर ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करके इंक्रीज एक्टिविटी कर दो, बढ़ा और करूं। आप उसको अभी भी मिलो। ऐसा नहीं कि मैं आपको फेड करने बोली, आप अभी आप उससे मिलोगे, लेकिन अब आप आपके अकॉर्डिंग मिलोगे, उसके कहने पे नहीं मिलोगे। आप उसको मिल रहे हो, कब मिल रहे हैं? when I am finishing these target, at the end they are visual learners, at the end, oh I'll talk to my papa, he is coming back, अच्छा हमने ये कर लिया। तो आपको वो चीज जो कर लिया है वो एक दिन में नहीं कर लिया है, वो आपको करवाना पड़ेगा, चाहे छोटा छोटा कुछ रख लो। हम लोग क्या करते थे, मेरे बेटे के लिए जैसे कुछ करना है, नहीं है टाइम नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए किचन में काम करें तो किचन में इन्वॉल्व कर लिया, तो उस समय का कार्ड क्या लगाया, वर्क विद मम्मा। अब और भी समय नहीं है मेरे पास कि मैं 1-on-1 करूं, तो उसके बाद मैंने क्या कार्ड लगाया, वर्क विद मम्मा फॉर वॉशिंग मशीन, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, ऐसे करके पिक्चर रीडिंग, तो ऐसे करके लगा लिया। तो उतनी देर तो ध्यान डाइवर्ट रहा, एक चीज लर्न की, दूसरी चीज आपने ब्रेक किया उसका शेड्यूल कि वो स्टबन हो रहा था आपके लिए, और लास्ट में उसको आप मिल रहे। शेड्यूल सबको फॉलो करना है, ये खाली आपके लिए नहीं है। तो आप मैम वो छोटी डालिए, लगाइए, और जी। फिर आप बताइएगा कि कहाँ तक पहुंचा। हाँ मैम, छोटे छोटे एक्टिविटीज में तो वो कॉपरेट करता है, जहाँ बाहर जाने की बात होती है ना, उस पता नहीं कुछ फोबिया है क्या है, वो उसमें फिर बिल्कुल कॉपरेट नहीं करता है वो। बाहर जाना अदर टाइम्स में भी शुरू करिए, उसी टाइम पे नहीं, जब उसने फिक्स कर लिया कि जब आप आओगे तभी जाएंगे, इस वजह से उसको वो बाकी टाइम पे घर पे हैं और आप आ रहे हो तो जा रहे हैं, ये ठीक है वाला मैम। हो रहा है। शेड्यूल जी। फॉलो। जी आदित्य मैम। आप पूछ लीजिए, फिर नेहा का पूछते हैं। मैम थैंक्स मैम। मुझे ये पूछना था कि आदित्य मेरा बेटा है, उसको ADHD OCD और स्लो लर्नर डायग्नोस हुआ है, तो काफी कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम ADHD में भी रहती हैं, तो क्या मतलब कि यहाँ पे मुझे कुछ सोल्यूशन या फिर ऐसा कुछ, या मुझे कुछ हेल्प मिल पाएगी? आपका बेटा कितना बड़ा है? 19 years old। 19 ईयर्स। देखो अब जितने भी आप सबके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम जो सर्विसेज देते हैं वो मैं बता दे रही हूँ, अगर आप लेना चाहो। हम ऑनलाइन सेशंस या ऑफलाइन सेशंस 1-on-1 लेते हैं, ऑफ द टेबल वाले बिहेवियर्स जिसके आ रहे हैं उसके लिए भी, या जिसको सिर्फ कुछ भी नहीं करवाना है, अर्ली इंटरवेंशन नहीं लेना है, सिर्फ सोशल स्टोरीज पे वर्क करना है, तो उसके लिए भी मैं ऑनलाइन से लिखवा सकती हूँ उसका सोशल स्टोरी, फिर उसको फॉलो कर सकती हूँ कि उसमें कितना फर्क पड़ा भी कि नहीं पड़ा, या क्या चेंजेस करने हैं। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा, आज मैंने सोशल स्टोरी लिखा दी है, वो वर्क कर रही है कि नहीं, इसके लिए तो कुछ सेशंस आप ले सकते हो।
और 19 ईयर्स का है तो आप कहाँ से हो? फिर तो ऑनलाइन ही सब कुछ चलेगा, या तो ऑनलाइन कंसल्टेशन करिए आप लोग जो जो दूर हो। वेरावल ये गुजरात सोमनाथ के पास। अच्छा, तो कहीं तो जा ही रहा होगा, कहीं ना कहीं तो आप लोग के बच्चों को जाना चाहिए। ये तो सबके लिए, जो जिसके पास नजदीक अच्छा है वहां वो जाए और उसका क्वालिटी टाइम स्पेंड हो। ये तो आपका थोड़ा बिहेवियर तो इससे कम होगा, पर वहां से बिहेवियर सीख के ना आए, बिहेवियर कम होना चाहिए। और एक्चुअली यहाँ उसमें पे भी अगर आपको पुश चाहिए, आपको वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं अवेलेबल हूँ। आप कैसे हो वो आप करो कि मैं ऑनलाइन आपका सेशन ले लूं। बहुत सारे लोग यहाँ सोशल स्टोरीज के लिए परेशान है। सोशल स्टोरीज अगर अच्छे से नहीं लिखी गई है तो वर्क नहीं करेगी बच्चे के अकॉर्डिंग। उसके लिए मुझे इनपुट्स चाहिए। अब वो इनपुट्स तभी होंगे जब हम आपका पर्टिकुलर आप ही का सेशन लें, तब होगा। अभी एक दिन में तो ना मुझे एंटीसीडेंट पता लगता है, ना मुझे क्या सिचुएशन पता लगती है। एक जनरल सुन के मैं जनरल आपको वो दे देती हूँ। जी, इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी आपसे। है ना, तो आप सेशन ले सकते हो। और 19 ईयर्स का है तो कोई अर्ली इंटरवेंशन चलना नहीं है। कंसल्ट करके आप देखते हैं अगर सोशल स्टोरी वर्क कर रहा है या कुछ और। शेड्यूल बहुत लोग नहीं बना पा रहे हो अपने लिए, शेड्यूल बनवा सकते हैं हम। पर हाँ, हर चीज में मुझे आपका इनपुट तो चाहिए होगा। अब अकेले बना बना के बिहेवियर के लिए काउंसलिंग जैसा कुछ। काउंसलिंग नहीं होगा, सोशल स्टोरीज होता है। ओके, और ठीक। अगर कुछ चाहिए और कुछ करना है तो वो भी बता दूंगी। अब वो पर्टिकुलर होना, जैसे एक लड़का था उसको पुलिस वाले की ही बातें करनी है हर बार, फिर उसके लिए बहुत कुछ किया। पुलिस की फोटो दिखा दिखा के उसके बारे में उसको जो मन में आ रहा है वो हमने उसको लिखने बोला कि तुम लिख लो। लिख सकता था तो हाँ जी। काफी हद तक क्योंकि पुलिस वाले की ही वर्बली बोले जा रहा है बोले जा रहा है, तो मैंने कहा दिमाग में जितना है वो लिख ही दो, या जी, ड्राइंग कर दो। अगर ड्राइंग अच्छी तो कम हुआ। उसको जो चीज परेशान करे उसको कहीं तो उतारना होगा ना हमें। बिल्कुल। तो मैम सर से कांटेक्ट करूं मैं? हाँ, आप करके पूछ लो भाई कैसे हो सकता है, वो मैं देखती हूँ सबका। और नेहा जी आपका हैंड रेज्ड है। थैंक यू मैम। सोल्यूशन सबको मिल जाएगा, पर आपको इन टच रहना पड़ेगा ना कि किसको क्या चाहिए। जी, वही मैं एडीएचडी का था इसलिए पूछ रही थी। तो अब मैं करूंगी। थैंक यू मैम। ओके, नेहा आपका हैंड रेज्ड है। हेलो। हाँ। हाँ, मेरी बेटी 9 इयर्स ओल्ड है और हम्म उसको माइल्ड ऑटिज्म है बोला है करके। हम्म एक्चुअली उसका बिहेवियर इश्यूज ये है कि उसको जब भी गुस्सा आता है ना तो वो कुछ भी लिख करती है। इवन वो शूज, खुद के हम्म शूज भी लिख करती है। और जैसे ही हम लोग उसको नहीं बोलेंगे तो और ज्यादा मीन्स उसको पता है वो जो नहीं करना है वही वो करती रहती है। तो ये और लिख करना जब गुस्सा आता है तभी कर रही है, आपको कैसे लगता है? हाँ, क्योंकि उसको कुछ जो बोला है ना, अगर ये नहीं करना है या कुछ कमांड्स दिया है जो उसको वर्ड्स पसंद नहीं है, जैसे उसको मराठी वर्ड्स कमांड्स पसंद नहीं है, हम्म इंग्लिश में बोलते हैं तो वो उसको कुछ फॉलो करती है, हम्म मराठी में बोलते हैं तो उसको अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम्म वो उस वक्त जो भी कमांड देंगे ना तो फिर वो कुछ भी हाथ में अगर बोला, कोई भी कमांड दिया तो वो लिख करती है कुछ भी ऐसे। अच्छा यानी गुस्सा आता है तभी करती है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही नहीं करती है। अच्छा, वैसे नहीं है गुस्से में लेकिन। रहती तो ही करते, नहीं नहीं ऐसे ही नहीं करती है, अब ये गुस्सा आता है लिकिंग तो ही वाला जो करती है ना, ये लिकिंग ये बढ़ गया है किसी न किसी वजह से, है ना, इसलिए वो है। हाँ लिकिंग हाँ करने को सोच रही है कि हम कर ले। अभी देखिए दो हाँ। तीन स्ट्रैटेजीज काम कर सकती है। अब एक तो है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, या तो फिर हम लिकिंग को लिख के और रेड कलर से क्रॉस लगाएं, और जो उचित बिहेवियर है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो एक पिक्चर में लिख के उसमें राइट लगाएं अगर उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना है तो। और फिर उसी कार्ड्स को हम सोशल स्टोरी में यूज करें, लेकिन उसके पहले हम उसको सेंसिटाइज करेंगे कि दिस इज नो, मतलब ये नहीं करना। लेकिन वो नहीं करे तो वो क्या करे? हाँ। अगर वो ये नहीं करे तो कुछ अच्छा, पहले एक तो ये तरीका है। और फिर उसको सोशल स्टोरीज से जोड़ दें, दूसरा ये तरीका है। तीसरा भाई इग्नोर। तो इग्नोर आप कर इग्नोर नहीं तो हम सकते। लोग बहुत बार हाँ करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि फिर से वो ट्रिगर हो जाता है, फिर से आ जाता है। हाँ, वो जैसे नहीं ये हो पा छूट रहा। गया था बीच में लिखिंग का, लेकिन हम्म फिर से बीच में आ गया, कहाँ से कैसे ट्रिगर हुआ पता नहीं, लेकिन आ गया। तो पहले तो आप पिक्चर्स तो वो अंडरस्टैंड करती होगी हमें लग रहा है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग है उसको, वो इंग्लिश अच्छा पढ़ लेती है, रीड ठीक है, करती तो है, आप इवन पिक्चर में ही राइटिंग वगैरह भी सब है। अच्छा, तो लिकिंग का पिक्चर, उसी का पिक्चर, उसी का रियल हाँ पिक्चर लिकिंग वाले को आप उसकी जगह पे जहां जहां वो देखती है और रेड कलर से क्रॉस करो,
और आप ये बताओ हमें कि वो समझ भी पा रही है वो चीज। और उसके बाद जो जिस वक्त उसको ट्रिगरिंग पॉइंट जो है उस वक्त के लिए भी लिखो कि मराठी यूज किया, एंड उस वक्त उसको क्या करना है उस पर टिक करो, या वो क्या करे कैसे समझे वो भी आपको सोचना पड़ेगा। जो आउटपुट बिहेवियर आप रिस्पॉन्स उससे क्या चाह रहे हो, और उसको टिक करो ग्रीन कलर से कि ये करना है। और जिस वक्त वो करे उस वक्त आपको रीइंफोर्स भी करना है, वेरी नाइस वेल डन करके, कि आप पर उस लीकिंग वाले को इग्नोर करते हुए पॉजिटिव वाले को आपको बहुत ज्यादा रीइंफोर्स करना है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा फिर है उसी कार्ड्स को सोशल स्टोरीज में यूज करना। और सबसे वैसे आसान है कि उसको लिक करने के लिए शूज वूज वहां दिखे नहीं, ये हुआ एंटीसीडेंट पे वर्क करना। क्या क्या शूज लिक कर रही है या जो बाकी की चीजें वो उसको वहां पे दिखनी ही नहीं चाहिए। आप कुछ दिन छुपा दो, कुछ महीने, कुछ दिन, जब हम हाँ कहते हैं तो मतलब नहीं, कुछ जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं और उसको जिस जगह अगर जाना नहीं है, हम्म। कहीं और जाना है, तो वो उस वक्त कुछ भी चाहिए, जो और अगर जब वो उसको शूज करती है मिला ऐसा तो तो आपका जरूर बहुत अटेंशन मिला होगा, हाँ। तो वो अब बढ़ गया वो। हम्म स्टॉप गिविंग अटेंशन इफ द बिहेवियर अकर्स। अगर हो जा रहा है तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देना है, हम्म रीइंफोर्स नहीं करना है उस बैड बिहेवियर को। हाथ पकड़ के हम्म बिना फ्लैट फेस करके अलग कहीं हाथ पकड़ के ऐसे रखना है कि वो उसको ना मिल पाए, और उस वक्त कहीं और डाइवर्ट कर देना है कोई और एक्टिविटी में नहीं, अगर अगर ऐसे बिहेवियर हो करने रहा है। जाते हैं ना तो हम्म। और ज्यादा करती है। हाथ पकड़ लिया वगैरह ना तो और वो और ज्यादा करती है, फिर रोना वगैरह भी चालू हो जाता है तो सोशल स्टोरी काम करेगी। सोशल पर वो स्टोरीज। है कि वो पिक्चर सोशल स्टोरी तभी काम करती है जब उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना हो। अंडरस्टैंडिंग है उसका, है वो स्टोरीज वगैरह, हाँ। इवन वो स्कूल एकेडमिक भी अच्छा कर रही है। तो फिर पहले वो और कार्ड इंट्रोड्यूस करो, पहले तो वो क्रॉस और राइट वाला है हाँ, ना। और ये लेकिन क्रॉस और उसका राइट वाले कार्ड जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो और भी दो कार्ड ले लो। एक तो लिकिंग हाँ, क्रॉस एंड बाकी का कुछ और राइट, एक तो ये लोगे, और दो तीन हम्म, कार्ड्स आप और ले लो जो सच में और भी इतने भारी बिहेवियर ना हो लेकिन थोड़े बहुत हो, जिसमें आप कह रहे हो जैसे कि रूम डर्टी है क्रॉस, एंड रूम कायदे से है राइट। या जो उसको एक्टिविटी पसंद है, जो भी हाँ, पसंद है करना, उसको तो जरूर दिखाओ एंड राइट। और मम्मी का हम्म, हैप्पी फेस लगा दो या रीइंफोर्समेंट वाला चीज भी लगा दो पिक्चर में। एंड हम्म, दूसरा उसी का एंटी ऑपोजिट कार्ड भी रखो रॉन्ग, उसको भी साथ में इंट्रोड्यूस करो, तब वो एसोसिएट करेगी ये वाला राइट रॉन्ग भी। ओके, हाँ। इवन वो क्या करती है, घर में जब भी आते हैं उसको हर चीज है, हर जगह पे रखने की आदत है। हम्म। जैसे वो एक तो पैटर्न भी है उसके अंदर, हम्म। और हर चीज उसको अपने अपनी जगह पे चाहिए। हाँ, कहीं थोड़ा फिक्सेशन भी, को ऑटिज्म का बहुत पर्टिकुलर पॉइंट है कि हमें हर हाँ, चीज परफेक्ट उसी जगह पे परफेक्शन, चाहिए। हाँ। हाँ, तो बहुत ये तो ये तक होता है कि अगर रिमोट ऐसे रखा है तो ऐसे रखा होना चाहिए, हाँ हाँ, चद्दर का जरा कोना मुड़ गया तो कोना ठीक हो, सबका अलग उसने अलग जहाँ है। जो रखा है उधर वो उसको हाँ। चाहिए ही रखा हुआ, अगर मैं गलती से दूसरी जगह रख दूंगी तो वो वापिस उधर रख दी। अब जैसे किसी की वो भी, चप्पल टेढ़ी है तो मेरा बेटा तो सोते से उठ के, नींद से उठ के चप्पल सीधी करके आएगा। हाँ, वैसे ही उसका भी हाँ। ऐसे ही है। तो नींद से उठते ही वो सब आपके शुरू पास कर तीन देती है। चार सोल्यूशन सबको मैंने बोले हैं, बार बार मैंने सोशल स्टोरी, बार बार मैंने शेड्यूल पे डालना, बार बार मैंने कहा लेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मोर ऑफ विजुअल्स, लेस ऑफ क्राउड, मोर ऑफ विजुअल कार्ड्स। तो ज्यादातर हमने क्या बोला है, हर बार विजुअल्स 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 विजुअल्स। तो हाँ, आपको बोलना कम है। द की बोलना थिंग कम है। इज कि आपको इंस्ट्रक्शन कम देना है। चौथी हम्म, पांचवी चीज मैंने बोला, अटेंशन बहुत ज्यादा किसी भी बिहेवियर पे नहीं देना। इवन इफ चाइल्ड गेट्स हर्ट, उसको चोट लग गई और आप बहुत अटेंशन देके मेडिसिन लगाने मत जाओ, बिकॉज इट हम्म, विल गेट कन्वर्टेड इनटू अटेंशन सीकिंग, और फिर ऐसे बच्चे हो जाते हैं कि जानबूझ के चोट मारेंगे जिससे मुझे अटेंशन मिले। हम्म, है ना, बहुत सारे बच्चे मैंने ओके, देखे हैं। हाँ हम्म। आदित्य जी बताएं, हाँ आप बताना चाहते हो प्लीज, हम इनका और भी सुन लें। हाँ। और एक है, उसको वो सेल्फ टॉक बहुत करती रहती है। सेल्फ उसको टॉक। बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, वो अकेले बैडमिंटन खेलती है और उसके साथ सेल्फ टॉक भी करती है। वो बैडमिंटन, बैडमिंटन आप हम लोगों उसका एक ने, बैडमिंटन वाला कार्ड शेड्यूल में डाल दीजिए और बैडमिंटन उसके साथ आप खेलिए। नहीं, वो मुझे खेलने ही नहीं देती है उसके साथ, और वो अकेले छुपा भी देते हैं ना हम लोग तो भी हाँ। वो रोती है उसके नहीं लिए, तो फिर वो वाला देना ही कार्ड तो पड़ता है। डालिए, वो तो डालिए, वो तो उसका अच्छा बिहेवियर है, तो उसको तो आप री करिए, उसको मत हटाइए। और उस वक्त अगर वर्बल स्ट्रीमिंग हो रही है तो थोड़ा होने दीजिए आप। हाँ,
है ना, वर्बल सोशली मीन्स वो बहुत एक्सेप्टेबल है। सेल्फ टॉक रहता है उसका। हाँ ठीक है, वो रोकेंगे धीरे धीरे, पहले आप उसको शेड्यूल में तो डालो। हाँ ओके। हाँ आदित्य जी आप बताएं। अरे मैं तो फोन यूज कर रहा हूँ। हम्म। ओके थैंक अच्छा यू। वो सुनो, मैं पूछ रहा था कि आई वाज रियली टॉकिंग irrelevant now, because I was talking irrelevant and I was talking behavior, masti, natak, whatever. I was just speaking like a very bad girls, very bad. I was just speaking like a girl, like Avish tuition friend ना, हम्म। मेरा फ्रेंड ऐसे ही बोलता रहता है। फिर जब तक इंडिया हार गए तो मैं टीवी तोड़ूंगा, ये लोग सब हाथ उठाएगा, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा ही लगता रहता है, हम्म। इसके लिए मुझे पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। क्या किया मैंने? किसको पनिशमेंट किसको देना पड़े? यू यूज टू डू ऑल दीज थिंग्स। अरे मेरा पनिशमेंट, मेरा, योर क्योंकि पनिशमेंट, हु इज गिविंग यू? यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। हाँ यस यस, अच्छा है, अच्छा व्हाई यू वांट पनिशमेंट? होता है ना, क्योंकि सुनो, पनिशमेंट जैसा होता है ना, क्योंकि ये लोग को घर में ऐसे ही बैठ के आराम करता रहता है, घर में ऐसे ही खाना खाता रहता है, इसके लिए तो बहुत बहुत बहस करता रहता है मम्मा पापा को। इसके लिए शर्म आनी चाहिए लोगों ने, क्या कि उसने वो पता नहीं था, क्योंकि अगर जो बिहेव किया ना तो उनको सीधा घर हॉस्टल में बिठाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत मस्ती करता रहता है। अगर जो बहस किया तो उनको गाली दिया तो रोज अच्छा नहीं लगता रहता है आजकल। बहुत दिनों से बाद ये है कि उन लोगों ने बहस करता रहता है, एंडरसन में बोलता है, रिपीट करता है, 10 बार बोलता है, कॉलिंग चैटिंग सब करता रहता है आजकल। इसके लिए सुनता ही नहीं है पापा मम्मा को। क्या किया उन्होंने, वो रोज आदित्य आपका ये प्रॉब्लम हम लोग कल कल सॉर्ट आउट करते हैं कि आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए भी कि नहीं। हाँ इसके लिए तो बहुत जरूरी तो बात। है नहीं कि आपको हर बार पनिशमेंट मिले, कई बार नहीं भी मिलेगा। हाँ इसके तो लिए वो मैं तो आपको बताऊंगी, आपको अपने से नहीं सोचना है कि मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो हम सोचेंगे कि आपको मिलना चाहिए तो देंगे, अदरवाइज आपके मांगने से नहीं देंगे आदित्य। नहीं दे सकते ना, नहीं वही दे तो। सकते। तो अभी हम लोग रुकते हैं यहाँ, हमारा सेशन कंप्लीट होगा और उसके बाद कल हाँ हम लोग आपके बारे में बात करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस लेंगे। राइट आदित्य? राइट राइट राइट। और ओके। उसके मैच आने के बाद, वो मैच आने के बाद ऐसे ही खाना चाहिए था। ओके इसके लिए तो आदित्य, वी विल टॉक टुमारो। तुम्हारो। राइट? यस। हाँ So अच्छा, we'll और sort नाम क्या out आपका? every question and answer tomorrow, right? और you नाम क्या write आपका? down the question कि आप क्या चाह रहे हो। अच्छा नाम क्या आपका? गरिमा। गरिमा। पूरा यस। नाम? श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, गरिमा श्रीवास्तव। ओके, जी। कहाँ पे रहते हो? Aditya, I can't answer all these questions now. We will Oh, talk sorry, tomorrow. sorry. We will I talk can. tomorrow, I'll right? talk tomorrow. Yeah, Okay, ना? yeah, yes. Okay, You'll have to okay, wait. अच्छा, और किसी okay, का कुछ? okay, okay. कल का सेशन चालू होगा 11 o'clock पे, 11 AM मॉर्निंग। और जो इस आज बहुत इंकरेज में ये हुआ हूँ कि आई कैन सी दैट देयर इज लॉट ऑफ नीड ऑफ सोशल स्टोरी सेशन ऑल्सो। there's lot of need of how to structure a workplace, how to structure home also. So we can we certainly do lot of things which helps a person with disabilities and parents also, so that they can structure home. And so this is a very long process. Certainly it cannot be covered within 4 hours of sessions. So we'll meet. I'll give you Zoom link. Uh, how to get recording? You will get a WhatsApp message with a password, and that is a Zoom recording, and you can watch that for 24 hours. After that, I'll remove that from the Zoom. So similarly for tomorrow also, you will get a Zoom link, Zoom recording, and you can watch after 24 hours. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एक बार अगर आप लोग का कैमरा कल ऑन हो जाता तो कल ऑन करवाएंगे, बिकॉज टुडे सम पीपल हैव लेफ्ट, so then we'll record this. Thank you. Thank you.